सभी आ गए ना? हाँ, आ गए. A very warm welcome to one and all to the weekly Star Debater 2 versus 2 debate session. So before starting, I would like everyone to congratulate yesterday's winning team, Defia, Vivek and Himashri. Yes, and I would also like to congratulate yesterday's star debater, Vivek Kolita. Okay, moving forward, the topic for today's debate session is consuming meat is unethical. The motion for today is consuming meat is unethical. So, be, before starting, I'd like to divide the team. So the four team will be Vivek Kolita and Lashmita Bhawal. And the against team will be Rajashri and Biplab. I'll repeat it once again. The four motions team will be Vivek and Lashmita, and the against of the motion will be Rajshri and Biplab. So before moving forward, I would like the EC members to give their opinion on this topic. So I'll first of all invite Bhargav to express his views. थैंक यू मॉडरेटर। तो आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो मुझे पता नहीं क्या होगा आगे जाके और आशा करता हूँ कि मतलब एक फायरी डिबेट हो आप सभी के बीच। और ऑल द बेस्ट। लास्ट में मैं हो सके तो खुद का भी एक ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन दूंगा। सो अभी के लिए ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। थैंक यू। Now I'd like to invite Kanchan to share her views. Okay, thank you moderator. Good evening and मुझे इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना, मैं सुनने आई हूँ. So give your best and yeah, best of luck. Okay, so now we'll start with the debate. I would like to invite Vivek Da from Team A to give his introduction and starting arguments. Thank you, moderator. My name is Vivek Kalita, and I'm speaking for the motion. Consuming meat is unethical. Yes, I do support the motion. I have very strong arguments for supporting my arguments, and I look forward to have a good debate and support my teammate Lashmita. Okay, now I'd like to invite Rajshri from group Team B to give her introduction and arguments. Okay, thank you, moderator. So I am against the motion, and I strongly do not support the motion that is consuming meat is unethical, because let me just give a very short story to you all. That is, the plants are as sensitive as any other creature. So whether you eat a plant or an animal, whatever it is still a violence. Only thing is they don't scream. That doesn't mean they are not expressing that they are getting hurt. The evidence has been shown is that suppose an animal goes to a forest and start eating a plant, after some time a plant immediately send the messages to their species, and when a elephant again go to eat another those plants, the plants really fill their leaves with a poisonous material. So that when the elephant goes and try to eat those plants, it feels a very bitter in taste and poisonous. So see, among them there is so much sensitivity. So whether you pluck a fruit or vegetable or cut an animal and eat everything is cruel. It is just that we must do it with some sensitivity only to the extent that it is necessary. Thank you so much. Lashmita, kindly give your introduction and your views. Thank you, moderator. So today I got for the motion. Thank you for that. So आज का जो topic है eating or consuming meat is unethical. I strongly support this thing because I too am trying to go to that path, and I strongly believe that ये सिर्फ unethical ही नहीं, harmful है, insensitive है, and एकदम ही मतलब non-sustainable और non-reliable एक source है, एक process है. And I have really strong points and actual viewpoints and actual stories which I have seen and I have viewed and I have experienced. So the changes which I have brought into my life after
separating and like creating this new form, new theory ki, like consumption of meat or this non-vegetarian things is really unethical and obviously injurious to me. So I'm gonna just represent my points to all you, and I hope that I can make you understand the thing which I already did understand. Thank you. Now I would invite Biplab to give his introduction and his first arguments. तो हेलो एवरीवन, आज मैं अगेंस्ट द मोशन बोलूंगा. सो कंजम्पशन ऑफ मीट को एथिकली रिलेट करना, मतलब एथिकली कनेक्ट करना बहुत गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि कौन क्या किसी का खाना वो सोसाइटी डिसाइड नहीं कर सकता. वो डिसाइड करेगा उसका पास रिसोर्स कितना एक्सेस है, उसका वो रिसोर्स कितना एक्सेस कर पा रहा है. तो आप नॉर्थ वाले व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, और जो नॉर्थ ईस्ट में उसको आप ये नहीं बोल सकते आप नॉनवेज क्यों खाते हो, क्योंकि उनके पास अलग अलग एग्रीकल्चर नॉर्थ में इजी है, तो वो उनका कल्चर वैसा रहा है कि वो वेज खा रहे थे. पर नॉर्थ ईस्ट में वैसा एग्रीकल्चर इतना इजी नहीं है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत लेट आया. अभी भी नॉर्थ ईस्ट में वैसा एग्रीकल्चर फैसिलिटीज नहीं है. तो उन्हें उनका हिस्ट्री से वो ऐसा है कि मीट खा के चल रहे, और ये किसी का ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल लिबर्टी है, वो क्या खाना चाहता है क्या नहीं खाना चाहता है. इसको हम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एथिकली गलत है, तो उनका लिबर्टी को छीनना होगा. तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है, और टॉपिक्स आके बोलूंगा. Now from Team A, Vivek Da, please open your mic. Thank you, moderator. Let me just first come to Rajashri. Yes, Rajashri, I strongly do give my support to your point that both plants and animals, we should have certain sensitivity while having them as our food. But we know, we cannot deny our food. When we talk about plants' pain, I think plants lack a central nervous system like any other animals. So they definitely cannot differ between pain and pleasure. That's the first thing. And when we eat a plant-based diet, it is less cruel than eating up an animal. Okay. Second, again, I would extend my support to Biplab's point that yes, geographical factor plays a major role in society's dietary patterns. But when we as humans have access to vegetarian food, to plant-based diet, why not move in that direction? Why is it that we have to kill an innocent animal for our food if we have that access? From Team B, Rajashri, do you have any counter? Yes, I do have. May I? Yes. ओके सो मैं पहले विवेक दा के पास आना चाहती हूँ. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने कहा है कि प्लांट से ज़्यादा एनिमल्स को अगर हम लोग कंज्यूम करें तो वो ज़्यादा क्रूएल्टी होगा. तो मेरा कहने का मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक ट्रीज को काटा जाता है तब हम लोग क्या नहीं बोलते डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए. तो अरे तो आप स्टिक कीजिए, आप खा क्यों रहे हैं प्लांट्स को, ठीक है. और देखिए जो एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी हो रहा है वो तो हम नहीं कर रहे हैं. हमारा प्रेफरेंस है कि हम खाएंगे, हमें अच्छा लगता है खाना मीट, हम खाएंगे. अभी जो हम लोग का इंडस्ट्रीज है जो एनिमल्स के साथ थोड़ी सी जो एनिमल्स के साथ स्लॉटर कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ इंजेक्ट करते हैं उन लोग को थोड़ा बल्कि बना देने के लिए, ये तो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, ना कि हम लोग का. हम लोग का सिर्फ एक ही है कि वी विश टू ईट व्हाट वी वांट एंड सेटिस्फाइंग आवर ओन नीड्स इज नॉट अ बैड थिंग, राइट. इट्स आवर पर्सनल चॉइस. किसी के लिए कंज्यूमिंग मीट एथिकल है, किसी के लिए कंज्यूमिंग मीट अनएथिकल है. और अगर आप लोग को लग रहा है कि यू हैव टू स्टिक टू योर मीन्स वो एथिकल वर्ड में इतना ही स्टिक होना है, देन why you are being why not I'm telling to it's not I'm not telling this to Vivek the only it's for whole 40. तो हम आप लोग क्यों ये सेल्फिश टर्म में यूज कर रहे हैं. अगर आप लोग को इतना ही एथिकल के बारे में सोचना है तो जस्ट सी द जैनिज्म. उन लोग तो जो रूट से उठे हुए अनियंस होते हैं या आलू होते हैं, उन लोग के लिए वो भी अनएथिकल है, वो लोग ये नहीं खाते. सो मैं यही बोलना चाहती हूँ अभी के लिए. थैंक यू. From Team A, Lashmita, please open your mic and give your arguments or counter arguments.
ओके, थैंक यू मॉडरेटर। सो जैसे कि हम सबको पता है कि जब हम कोई भी एनिमल करते हैं, राइट, सो देयर इज दिस फियर, ट्रॉमा, फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी इनटू दैट एनिमल, राइट। तो जब भी हम उसको काटते हैं तो बेसिकली वी आर कंज्यूमिंग ऑल दोस इमोशंस ऑफ दैट एनिमल, राइट। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम लोग बाहर खाना खाते हैं, बेसिकली जब नॉनवेज खाते हैं ज्यादातर टाइम्स होता है कि खाना खाने के बाद आई सर्टेनली डोंट फील दैट, लाइक एक अजीब सा फीलिंग आता है, देयर इज दिस सफोकेशन, एकदम घटिया सा एक फीलिंग आता है एंड वी डोंट नो द रीजन व्हाई, देयर इज लाइक ऑलवेज अ व्हाई, ओके। एंड उस मतलब व्हाई का ऑब्वियसली एक मतलब जीता जागता एग्जांपल यही है। देयर इज दिस चैनल आई फॉलो, सात्विक मोमेंट, उसमें क्लियरली ये बताते हैं कि कितने सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एडल्ट एक्ने, पीसीओडी, फिर बाद में थायराइड और कितने सारे हाइपरटेंशन, ये सब जो इतने सारे लाइक रूट कॉजेज ऑफ आजकल तो लाइक हर से मतलब हर किसी को, यूथ से लेके बच्चों को, सबको ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं, ओके। देयर इज नो वन, मेरे क्लासमेट्स में कितने सारों को तो थायराइड है। तो उन लाइक वहां पे सात्विक मोमेंट पे ऐसा हुआ था कि लाइक कंप्लीटली सात्विक मतलब फूड मतलब अप्लाई करके अपने लाइफ में, दैट इज एकदम फ्रूट्स, एबीसी जूस, डिटॉक्सिफाइंग जूस, लाइक ऑब्वियसली एकदम लाइक ऑब्वियसली नॉनवेज को तो कंप्लीटली दूर ही कर दिया था उन्होंने। और वो करके 3-4 महीनों में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भाई। एंड इट वाज लाइक मतलब जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उन्होंने खुद बोला है, एंड आई हैव सीन देयर जर्नीज थ्रू आउट। ऑब्वियसली ये सब जो चीजें हैं ये सब तो बकवास मजाक तो है नहीं, राइट। तो ये जो सात्विक मोमेंट वाला जो बात है, इफ एनीथिंग दैट इज हार्मिंग योर बॉडी, ओके, तो सबसे पहले तो इंसान अपने बारे में ही सोचेगा ना। अगर कोई चीज खाने से मेरे खुद के शरीर में हानि हो रही है, देन व्हाई वुड आई ईट दैट? जस्ट यू टेल मी दैट। ऑब्वियसली अगर वो सात्विक मतलब लाइफस्टाइल फॉलो करने से मेरे शरीर का अच्छा हो रहा है और प्लस एक प्राणी का जीवन भी बच रहा है, देन ऑब्वियसली आई विल गो विद दैट, राइट। Okay, now I'll ask Biplav from Team B to express his views. हाँ, तो जैसे विवेक दा ने बोला, प्लांट्स को लेस हार्म होता है और फिर एनिमल्स को ज्यादा फील होता है। तो मतलब दर्द तो दोनों को हो रहा है, बस एक को कम हो रहा है, एक को ज्यादा हो रहा है आपके हिसाब से, पर दर्द तो हो रहा है। इस हिसाब से आप खाना छोड़ दो, पर आप खा क्यों रहे हो? क्योंकि आपका बॉडी का नीड है खाना। अभी आप एथिक्स तभी फॉलो कर पाओगे जब जान बचेगा। अब शरीर में जान ही नहीं रहेगा तो एथिक्स फॉलो करके क्या ही करोगे? सोसाइटी को एथिक्स सिखा के क्या ही करोगे जब खुद ही नहीं हो? तो ये बहुत ही अनडिबेटेबल बात है। तो फिर लक्ष्मिता ने बोला कि सात्विक खाना ठीक है। अब समझ लो आपके पास फैसिलिटी, आपके पास एक्सेस है कि आप मार्केट में जाते हो, आपको अच्छा सा मिल जाता है सब्जी, जिसमें आपको अलग अलग से 5-6 किस्म के आप सब्जी लोगे, उससे आपको अलग अलग न्यूट्रिशन मिल जाता है। गुड, बट ये फैसिलिटी सबके पास नहीं है। जैसे कि मैं नागालैंड से हूँ, यहाँ के आप रिमोट एरिया में जाओगे तो वहाँ पे मार्केट भी नहीं है। वो लोग खुद ही जो अपना फार्म में करते हैं वो खाते हैं, और जो खुद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उसे उसे ही खाते हैं, और उसे बेच के वो अपना घर चलाते हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे कि वो एथिकली गलत है? नहीं, वो अपने जगह पे सही है। उसके पास वो रिसोर्स का एक्सेस भी आपके पास है, तो आप बता रहे हो कि ये गलत है। उसके पास नहीं है पर वो खा रहा है, तो गलत क्या है? और क्योंकि उसे खाना पड़ेगा, उसका नेचर, उसके वहां पे ऐसा टेम्परेचर भी थोड़ा कम है, तो उसको मीट क्या करता है कि आपको बॉडी को गर्म रखता है, तो उसे वो खाना पड़ेगा, उसके बॉडी के लिए वो अच्छा हो रहा है। पर वही आप नॉर्थ में खाओगे तो एक्सट्रीम हीट है इधर, तो आप इधर डेली मीट खाओगे तो आपको होगा ही मेडिकल प्रॉब्लम। कोई भी चीज का एक्सट्रीम करोगे तो उसका इफेक्ट आएगा ही। आप जैसे कि अभी बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो मत खाओ जिसमें जो चीज आपको जिससे आपको नेगेटिव रिएक्शन मिल जाता है, तो उसे मत खाओ। सीधी बात, पर्सनल चॉइस है। मुझे सूट नहीं करा, मैं नहीं खाऊंगा। जिसे मीट सूट नहीं करा वो मीट नहीं खाएगा। पर आप ये नहीं बोल सकते कि एथिकली ये गलत है। डॉक्टर किसी को बोलते हैं तुम थोड़ा नॉनवेज खाओ, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एक साथ में होता है, उसे अलग अलग 4-5 वेजिटेबल्स नहीं खाना पड़ता। तो मतलब ये डॉक्टर उसे गलत तो नहीं सिखा रहा है, उसे सही बोल रहा है, और उसका बॉडी उससे फिट रहेगा। तो ये मतलब एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सब पे एक ही बात वो करना सही नहीं है। Okay, Lashmita, do you have any counter? यस, थैंक यू मॉडरेटर। सो जैसे कि विप्लव दा ने बोला कि लाइक वो नॉनवेज बॉडी के लिए अच्छा रहता है, तो कुड यू प्लीज टेल मी कि विराट कोहली अचानक से वेजिटेरियन क्यों बन गए अगर वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा है तो? आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट, थैंक यू। Oh, Biplav, विराट wait. कोहली क्यों बने आपको? Yes, I'll call you. Rajshri, do you have any counter?
Yes, I have. ओके, सो बेसिकली लश्मिता जी ने कहा है कि बहुत मतलब एकदम अच्छा नहीं है मीट हम लोग के हेल्थ के लिए, एकदम ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तो एक साइड ने लश्मिता जी ने कह दिया। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ मीट। ओके, जब हम लोग का बुखार होता है या हम लोग के बॉडी में बोन का कुछ प्रॉब्लम होता है, एक होता है, तब हम लोग को डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आप एक चिकन का सूप बनाइए, चिकन खाइए। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग व्हाट आर द मोस्ट मेजर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मीट। मैंने चिकन का अलग से टर्म बोला है बिकॉज इट कम्स इन मीट। ओके, सो नाउ इट improves heart health. Okay, it is high in vitamin B6, helps to prevent heart attacks. Vitamin B6 aids in the reduction of homocysteine levels, which is one of the key components linked to an increased risk of a heart attack. ठीक है, second is meat soup has long been used as a home remedy for treating common respiratory infections such as the common cold and flu, as I already told it. Okay, it also helps boost testosterone levels. Men should eat zinc-rich foods because it helps regulate testosterone levels and increase sperm production. Okay, also it relieves stress. ठीक है, आपको आपने ये कहा था कि आपको खा के कैसा लगता है, एक एंशियस फील होता है, लेकिन आपको क्या ये भी पता है कि मीट कंटेन्स टू न्यूट्रिएंट्स दैट आर बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, दैट इज tryptophan and vitamin B5. Both have a calming effect on your body, making meat an excellent choice after a stressful day. It also takes great, which contributes to its stress relieving and happiness inducing properties. So मैं अभी के लिए ये कहना चाहती हूँ. Thank you. Okay, now I'll invite Vivek Da for any counters. Uh, Actually, I was hearing all of them very carefully, and I heard someone debate about whether there is resource availability. As Rajashri was just talking about benefit of meat, I think we all are deviating from the topic. Let me just make a differentiation for both of you. Let's understand what's the difference between ethical and non-ethical. It has nothing to do with whether you are benefited from plant-based diet or animal-based diet. There are certain ethical values which are universal across all human beings. May it be kindness, being sympathetic, being empathetic. Okay, so when if you are by virtue of being a human, you have these ethical values, and if you have a option कि मुझे मीट खाना है कि प्लांट बेस्ड खाना है, एंड अगर आपके मन में एक बार भी नहीं आ रहा है कि उस जानवर का या ये उस चिकन का कोई भी कुछ भी हो, उसको मैं मार के काट के खा जाऊंगा, इफ दिस एथिकल कंसर्न डजंट कम टू यू, कल तो कोई इंसान भी खाने लगेगा, फिर उसको भी उसको कौन बोलेगा फिर आप कोई इंसान क्यों इंसान मत खाओ फिर, है ना? तो ये बात है। और आखिर में किसी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि अगर किसी को खाना हो मीट तो वो तो इंडिविजुअल नीड है। Again, deviating from the topic, we are not debating about individual needs over societal needs. We are talking about ethical values. Okay, and okay, that's my point for now. Okay, now I'll invite Biplav from Team B to give his counter. Hello, Biplav. हाँ, तो पहले रश्मिका ने बोला जैसे विराट कोहली ने फिर क्यों छोड़ा। विराट कोहली ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो रहे थे और उससे किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम्हें एक बार नॉनवेज छोड़ के देखो, शायद तुम्हें आराम मिले। उसने छोड़ा, उसे आराम मिला। और वो मीट का सप्लीमेंट, उसके पास अपना न्यूट्रिशनिस्ट है, तो मीट का सप्लीमेंट ले सकता है, उसे पता है क्या क्या लेना है, एक्सपर्ट है उसके पास। एक नॉर्मल इंसान के पास इतना फैसिलिटी नहीं है। तो और फिर विवेक दा ने क्या बोला कि अरे इन्होंने बोला क्या था, मैं पॉइंट ही ऐसा, विवेक दा एक बार प्लीज आप रिपीट कर दोगे? Moderator, may I? Yes, please. कौन सा पॉइंट आपको याद नहीं रहा? आपने लास्ट स्टेटमेंट में बोला कि मुझे कुछ ध्यान नहीं।
आपने जो जो भी स्टेटमेंट्स दिए, मैंने कहा कि वो सारे टॉपिक से डेविएटेड है। आपने नागालैंड के बारे में बोला कि उधर रिसोर्स का थोड़ा क्रंच है, तो डिबेट तो ये नहीं है कि कोई कहाँ पे रिसोर्स होगा तो नहीं, ऑब्वियसली कभी कहीं पर रिसोर्स क्रंच होगा तो वी वोंट बी गोइंग इन सिंक कि आप मत खाओ अपना डोमेस्टिक जो भी है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट एथिकल वैल्यूज, वेल बीइंग अ plant based diet or a animal based diet, so in that if you have the option of being giving your ethical concerns a primacy over your pleasure, then why not go for plant based food? आप एटलीस्ट आपका आपने आपने आप ही ने बोला था कि तो फिर खाना छोड़ दूं क्या? मत खाना छोड़ो। अब जी बॉडी को जितना नीड है वो फुलफिल हो जाता है प्लेन बेस्ड डाइट से। दिस इज द ओनली पॉइंट आई मेड। Okay, Biplab. So please give a counter. हाँ, तो आपने बोला एथिक्स, तो एथिक्स तो मैं तब बनाऊंगा ना जो जब मैं जिंदा रहूंगा। तो मेरे यहाँ एक्सिस नहीं है, मैं मुझे नहीं मिला सब्जी, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास सामने एक दिख रहा है कि हाँ इसे खाता हूँ, और आप बोल रहे थे कि ह्यूमंस ह्यूमंस को खा जाएंगे फिर। ठीक है, आप ह्यूमंस ह्यूमंस को, तो आप खुद इमेजिन करके, तो ह्यूमंस ह्यूमंस को खाने का दोस्त सोसाइटी में जाके खड़ा हो पाएगा? कोई उसे सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, इसलिए वो नहीं खाता। नहीं तो खाने को तो खा सकता है, शायद पुराने जमाने में खाते भी होंगे। Okay, now I'll invite Lashmita to give her counter arguments. थैंक यू मॉडरेटर। जैसे विप्लव दा ने बोला कि वहाँ पे रिसोर्सेज कम है जहाँ पे वो रहते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली ना, फॉर इंस्टेंस अगर मैं घर पे एक मुर्गी पाल लूं और एक पेड़ उगा लूं, ठीक है, मेरे यहाँ से मतलब मूवेबल चीज कौन सी है? मुर्गी। मुर्गी चली जाएगी, राइट? वो शायद ये भाग के चली जाएगी, तो फिर बाद में लॉस तो मेरा हो जाएगा, या फिर कोई उसे उठा के लेके जाएगा, लॉस मेरा होगा। पेड़ को कौन उठा के लेके जाएगा? एंड पेड़ को तो उगाना सिर्फ सीड ऐसे फेंक दो, थोड़ा पानी दे दो, एवे ही उग जाएगा वो। एंड इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस रिसोर्स, उसमें तो लाइक फल फूल आते ही रहेंगे। बट मुर्गी एक बार गई गई, खत्म, चैप्टर क्लोज, खत्म। एंड ऑल्सो सात्विक लाइफस्टाइल से जो नंबर ऑफ लाइक लोगों का बेनिफिट होता है उसका लाइक परसेंटेज बहुत हाई है। एंड जैसे कि विप्लव दा ने खुद ही बोला कि विराट कोहली को हेल्थ इश्यूज थे, इसीलिए लोगों ने उनको रिकमेंड किया कि ये करो तुम, राइट? तो दैट इज फॉर अ रीजन ना। आपने खुद ही साबित कर दिया कि ये छोड़ के, मीट छोड़ के उस इंसान का भला हुआ है, और उस इंसान के पास मतलब न्यूट्रिशनिस्ट है। अच्छा, ओके, आई अंडरस्टैंड भाई। आजकल हर किसी के पास गूगल है, यूट्यूब है, एंड गूगल एंड यूट्यूब पे आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। वो न्यूट्रिशनिस्ट हायर करने से वो कुछ अलग ही प्लेनेट का इन्फॉर्मेशन नहीं दे देगा। इट्स जस्ट दैट उसके लाइक उसने उसको हायर किया, एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो एक बात की जगह 10 बात बोल देगा। इट्स जस्ट दैट द थिंग। थैंक यू। Okay, now I'll invite Rajshri to give her arguments. ओके, थैंक यू मॉडरेटर। तो मैं विवेक के आर्ग्यूमेंट्स में काउंटर करना चाहूँगी। मेरा बात ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं कि ये एथिकल है या अनएथिकल है, वो तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग को जो खाने के लिए मिल रहा है ना मीट, वो कैसे मिल रहा है? बिकॉज इट्स लीगल इन आवर कंट्री। ओके, हम लोग ये लीगल है, हम लोग को ये एक्सेस दिया गया है। अगर ये इलीगल होता तब ये गलत होता ना, कि अरे हम लोग तो ये अनएथिकल चीज कर रहे हैं, खराब चीज कर रहे हैं, हम लोग को नहीं खाना चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चिकन मीट इंक्लूड्स इन इट मल्टीपल विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन अगर मतलब मीट को अगर कोई चीज टक्कर देना है तो वो मतलब प्लांट्स बेस्ड होगा, थोड़ा थोड़ा, कभी पनीर होगा, कभी सोयाबीन होगा, थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ तुम्हारा वेजिटेबल्स होगा, फ्रूट्स होगा। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग को सब एक साथ मिल सकता है एक जगह में? नहीं। इट विल टेक अवर टाइम, इट विल बी अ टाइम कंजम्पशन, इट विल मेक अस लाइक अभी कैसे करें, कहाँ पे जाए, अभी तो इतना तो हम लोग के पास नहीं है। पर वी एज इन अ मीट वी कैन गेट ऑल द न्यूट्रिशंस ऑल टुगेदर। Okay, and if it is so wrong, if it is so unethical, then why our country is not banning us from eating meat? What answer will you give in it? Okay, thank you. I'll ask Vivek Da to open his mic and give the counter. Actually, we all have heard this statement that if you feed a man a fish, you feed him for a day.
but if you plant a tree, you feed him every year. Okay. And I heard Biplab say कि जिंदा रहेंगे तब तो ये चीज करेंगे. I know that India is 80% vegetarian, and 80% those people they are alive. It's not that 80% people कहीं पे कहीं से आके इंडिया में खाना खा के चलो मर रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा. Okay. If you talk about animal-based diet, is it sustainable? Answer is definitely no. And Rajashri made a point. I really couldn't understand her basis. She was talking about फिर ये legal क्यों है? So the argument here is not between legality and ethics. Okay. To tell a lie, it's not illegal thing. Okay. But is it ethical? That's the differentiation I want that she understands. Ultimately यही है कि sustainability में question आ जाता है. You plant a tree, you get 10-30 fruits every year, but from one animal you get one animal. Okay. And will that chain continue? If that chain continues, तो हमारे जो ecosystem है, हमारा environment है, उस पे क्या impact पड़ेगा at the long term? ओके. सो ये सारे चीजें हमको कंसिडरेशन में लेकर ये एथिकल चॉइस करना है कि हमें प्लांट बेस्ड डाइट में मूव करना चाहिए एज ह्यूमंस हु हैव. आजकल तो बहुत ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि यू नो recently Israel, I think India is taking the technology from Israel. जेनेटिक कुछ ऐसा तो मैं नाम में भूल गया कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं किसी भी सिचुएशंस पे. सो अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं एज ह्यूमन बींग्स, आई थिंक वी शुड स्लोली मेक द ट्रांजिशन टू मूव टू अ completely plant based diet. Okay, that's my point. Okay, so now I'll ask Rajshri and Lashmita to open the mics for the open mic debate session. Thank you, Rajshri? moderator. Okay. Okay, now you guys can engage in an open mic session. If you have any arguments, please. Okay. So, Krishna, Yeah, So, sure. I would like to keep my point first. That is, अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि when you think about the number of animals that are killed in the processing, harvesting, sowing of fields and so on, the number that are estimated are about 1.8 billion animals. Okay, if you look at the number that would be killed in a purely animal-based diet, the estimates are 1.35 billion. Okay, so the argument which I want to keep is that when you are faced with an option wherein some harm is going to be done, you are required to pick the option that does the least harm. Okay, if we look at the number of animals that are killed as the result of a purely vegan diet, there is no way that does least harm. Okay, we are normally obligated to at least consume some meat if what we are saying is that animal welfare is a priority. Thank you. okay. So thank you, Rajeshri, for your points. Moderator, may I start? Yeah, you guys can talk whatever you want. ओके. सो मैं बोल रही थी ये जो पहले तुमसे राजश्री ने ना कि शायद वो विप्लव दा ने बोला था कि ये क्या अगर ये इतना अनएथिकल है तो इसे हम लोग क्यों नहीं उठा देते, राइट? तो गवर्नमेंट क्यों इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करती? गवर्नमेंट यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, ये कैसे इंप्लीमेंट कर देगी भाई? ऑब्वियसली इतने सारे लोग चिल्ला उठेंगे अबाउट दिस, राइट? एंड ऑल्सो उन्होंने जो बोला था कि वेजिटेरियन लोग क्या मतलब मैं जिंदा कैसे रहूंगा अगर मैं वेज खाऊंगा? देयर इज दिस इंस्टाग्राम क्रिएटर, वो फलाहारी है, ही जस्ट कंज्यूम्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी नहीं, सिर्फ फ्रूट्स कंज्यूम करता है वो इंसान. आई नो ऐसी चीज को बट तुम अडेप्ट उसका करने जब में कुछ टेस्ट करवाओगी तब देखना कि वो कितना डेफिशिएंसी में भूग रहा है, कितना सफर कर रहा है. हाउ मेनी डेफिशिएंसीज ही हैव इन हिज बॉडी. ईटिंग मीट, नॉट ईटिंग मीट विल क्रिएट सो मच डेफिशिएंसीज इन बॉडी यू कैन नॉट इवन काउंट. इट्स अ मल्टीपल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन योर बॉडी. ओके. एंड ऑल्सो द थिंग जो अभी तूने बोला, ओके, आई कंप्लीटली एग्री विद द थिंग दैट यू आर सेइंग. ओके, क्योंकि होता होगा ऑब्वियसली हर किसी की बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करती है. एंड ऑल्सो द थिंग, ये जो मार्केट है ना, ये जो चिकन प्रोड्यूसिंग मार्केट, राइट? तो यहाँ पे जो लड़का जो मेल चिक पैदा होता है उसको तो पैदा होते ही क्रश कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वो अंडे नहीं दे सकता, तो बेकार में. दैट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. जस्ट थिंक ऑफ द नंबर ऑफ द मेल चिक्स दैट आर बीइंग एबॉलिश्ड. वो तो खत्म, क्रश कर दिए जाते हैं. हाउ अबाउट दैट भाई? मैं तो वो पोस्ट देख के मैं कांप जाती हूँ कि फक मैन, व्हाई इवन आई एम ईटिंग चिकन. आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दैट एब्यूसिव वर्ड, आई एम सो सॉरी मॉडरेटर, बट द थिंग इज इट्स जस्ट सो शिवरिंग. आई जस्ट शिवर ऑन टू द थॉट कि अगर मेरी वजह से, अगर मेरे प्लेट पे सजने के लिए कोई इंसान अगर मर रहा है या फिर कोई जीव जंतु मर रहा है, देन कर्स मी फॉर दैट.
I am the like wrongdoer, I am the culprit here. मेरी वजह से अगर ओके आई नो आई अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट यू सेड कि प्लांट्स को ये होता है वो होता है, बट स्टिल आई मीन लाइक दैट इज ऑन टू सम लेवल, बहुत सारे लोगों को वो शायद कंसिडरेबल हो भी जाएगा, बट एक जीव जंतु जो हिल सकता है, बोल सकता है, प्यार बांट सकता है, उस इंसान को ऐसे हत्या कर देना, दिस इज जस्ट कंप्लीटली, ओ माय गॉड, दिस इज कंप्लीटली इंटॉलेरेबल। दिस इज लाइक जस्ट लाइक ब्लड बॉयल हो जाता होगा बहुत सारे लोगों का ये सुन के। और जो लोग इमोशनल हैं, मैं मतलब जिन लोगों का हार्ट वीक है, वो लोग तो बाप रे बाप, दे कांट इवन थिंक अबाउट दिस। ऐसा सब सीन्स ये सब जो होता है ना, अगर लाइक यू थिंक कि यू कैन ईट मीट ये वो, आप एक बार बुचर के वहां पे जाके देखना कैसे उसको हलाल किया जाता है। जब वो तड़पता रहता है ना, यू विल जस्ट फील द पेन दैट दैट एनिमल इज गोइंग थ्रू, एंड इट इज जस्ट अनबियरेबल। वो देख के ही कितने लोगों को खाने का मन नहीं करता भाई। आई एम द लाइव एग्जाम्पल इन हियर। देख के मैं खुद को कर्ज करती हूँ कि वाई एम ईटिंग इट। So that is the thing, na? And obviously, I am trying to step into the sustainable and the sattvic thing that I said. And I truly believe that that is the most reliable and sustainable and obviously the right path to go with. Thank you. Okay. So what I want to say is that ethical or unethical, एक अनएथिकल आई मीन एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एज अ होल, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस होल कंट्री, देन आई वुड लाइक टू से यू इज दैट कि तुमने जो बोला ना कि मेल लाइक चिकन्स को ऐसे मार डाला जाता है, शायद इसका तुमने एक ही स्टेटिस्टिक में देखा होगा, बट नॉट अदर। यू डू नॉट हैव अ डेफिनेट स्टेटिस्टिक अबाउट इट। शायद तुमको दिन में 1 या 2 न्यूज़ मिल गया होगा एंड यू आर स्टिकिंग ऑन इट। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट आई विल अगेन रिपीट इट कि अनएथिकल एंड एथिकल इज ऑलवेज डिपेंड ऑन ईच अदर्स ओन परसेप्शन। अगर हम लोग को लगता है कि आवर बॉडी वांट्स इट, आवर बॉडी नीड्स इट, देन वी विल डेफिनेटली हैव इट। ओके Okay. ओके, सो जैसे कि तुमने बोला कि इफ माई बॉडी वांट्स इट देन आई नीड इट, राइट? एंड जैसे कि इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, जस्ट बिकॉज वो चिकन अच्छा, मेरे आपने पास। आपने बोला कि आपको देख के बूचर के इधर पे बहुत शरीर जलता है कि कैसे मार सकते हैं। देन व्हाट अबाउट प्लांट? क्या आप सब प्लांट को काट के रख देंगे? हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हम लोग को मतलब हाउ आवर लाइफ विल बी सस्टेन्ड? एंड for one thing I want to literally say here is that we should see others, we should see ourselves before we see others. We should respect our own rights before others. क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हम लोग को नीड्स नहीं है? अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बोलती हूँ। थॉमस फ्रैंकलिन करके एक इंसान है जो यूएसए में फिशरी करता है। वो जब फिश लाता है उधर से, उसको फिश के अंदर भी एक छोटा फिश मिलता है। दैट मीन्स एनिमल्स ऑल्सो need something to consume and they also consume animals. What about that? Now तुम क्या फिश को जाके डांटोगे तुम छोटे फिश को मत खाओ? चिकन को जाके डांटोगे तुम कुत्ते को जाके डांटोगे क्या अब तुम हड्डी मत खाओ चिकन का? इट्स देयर, वो लोग यही खाते हैं। अब कुछ रेयर ब्रीड देखोगे, वो लोग को तुम अगर थोड़ा ट्रेन ऑन कर दो तो वो लोग थोड़ा खा लेंगे प्लांट्स, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। Okay. So जैसे कि तुमने बोला कि अगर मेरा बॉडी चाहिए मतलब चाहेगा तो मैं वो खा लूंगी। सो दिस इज द थिंग कि अगर मेरे पास वो चिकन एक्सेसिबल है तो मैं खा लूंगी। कल को अगर मुझसे कोई बड़ा क्रिएचर आ गया कि भाई मुझे लक्ष्मिता को खाना है तो मैं खा लूंगा, तो ऑब्वियसली ना, तो मुझे कैसा फील होगा भाई? ऑब्वियसली दैट इज लाइक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट जस्ट कीप योरसेल्फ ऑन टू दैट पोजीशन कि भाई वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ये लोग मुझे मार के खा जाएंगे क्योंकि इनका हक है। अरे भाई, हाउ इज दैट एथिकल? यहाँ पे क्वेश्चन तो ये एथिकल और अनएथिकल का ही है ना। मैं अपना पेट भरने के लिए एक ऐसे जंतु को मार दूंगा जो कुछ बोल नहीं सकता और जो कि प्यार बांट सकता है, राइट? Okay, so now I'll ask both of you to close your mics. Turn off your mics. Now I'll invite Vivekda from Team A and Bipla from Team B to open their mics for the open mic session. Okay, moderator, I think I will extend my privilege to my friend Biplab to start his argument. हाँ, तो जैसे विवेकदा ने बोला 80% इंडिया वेज है, 20% नॉन वेज। तो 80% को अगर वेज होना सही लगता है तो ठीक है, 20% को नॉन वेज एथिकली सही लगता है तो वो ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि एक स्टैंडर्ड बन जाए एथिक्स का कि सब वेज हो जाए, तो ये तो एथिकली ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप किसी का पर्सनल चॉइस हार्म कर रहे हो। ये एथिकली कहाँ तक सही है? और एथिकली आपको सही होना है तो आप तो एकदम क्रुअलिटी बंद ही कर दो। प्लांट वांट कुछ मत काटो, दर्द उन्हें भी होता है, वही एक्सप्रेस नहीं करवाते बोलते आपको नहीं लगता।
एकदम एथिकली सही देखिए होता है देखिए ये। मैं आप आपको ये नहीं, देखिए आप कंप्लीट जो करने कह में उसको रही है बोलते ना। रहना, कंप्लीट करने तो आप बोल अच्छा, देना, मैं नहीं बोलूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं, बिकॉज इट्स एन ओपन माइक, आई थिंक वी कैन engage in हाँ, तो हम लोग diverse. एक दूसरे का सुनेंगे तभी आप किसी को बोल पाओगे। सो Okay, please continue. मैं तो भी आपसे मैं भूल गया ना। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना कि सबको अगर इम्पोज कर देंगे कि सब वेजिटेरियन बनो, तो वो भी तो अनएथिकल है। यस, डेफिनेटली। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब आपके पास इंडिविजुअल चॉइस है कि आप वेजिटेरियन डाइट से अपना पेट भर पा रहे हो, आप हेल्दी खाना खा पा रहे हो, आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो जब आपको चॉइस करने को मिलेगा कि आप प्लांट बेस्ड डाइट से आपका हो रहा है रादर देन कि मीट खाने से, तो उसमें एथिकल कंसर्न ही आता है। फिर डिबेट इस बात पे नहीं रहेगी कि इंडिविजुअल चॉइस की बात है या एथिक्स की बात है ना। एथिक्स क्योंकि यूनिवर्सल होते हैं कुछ एथिक्स, है ना। मैं आपको आप टेररिज्म पीपल किल पीपल, ओके। That is not ethical, but when our soldiers kill people across the borders, but that is ethical. Okay, so there is a thin line to distinguish between being ethical and non-ethical, unethical. Okay, ethics आखिर में बात यही इसी में आके रुक जाता है कि जब आपके पास चॉइस हो कि आप प्लांट बेस्ड खाने से अपना खा पा रहे हो या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो खाओ, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तो क्या आप अपनी एथिक्स को प्रायोरिटी दोगे? हाँ, तो वही ना, आपके पास है, आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल तो आप खा रहे हो। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खा रहा हूँ वेजिटेबल्स। सबके पास वैसा नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए वही बात है कि किसी के दुनिया पास इतना अगर बड़ा है। रिसोर्स नहीं है, किसी के पास वो नहीं है, तो वो मत खाओ, अपना खाओ जो भी करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि डिबेट का मोशन ये है कि कंज्यूमिंग मीट इज अनएथिकल, तो मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि अनएथिकल हाँ है, अनएथिकल जब आपके पास चॉइस हो कि आप कुछ ठीक कर सको, आपका सिंपैथिक, आपका दिल, आपका, आप दूसरे इंसान के बारे में, दूसरे जीव जंतु के बारे में सोच पा रहे हो, तो वही तो एथिक्स हुआ ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो इट्स अ मैटर ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एथिक्स। हाँ, तो आपका एथिक्स तब कब चला जाता है जब आप प्लांट्स काटते हो, तो आप एक अनियन अनियन आलू या प्याज निकालो। आप जैसे ही आलू प्याज निकालते हो, देखिए उस प्लांट का लाइफ उधर खत्म हो जाता है। आपका देखिए प्लांट का जब लाइफ उधर मैं खत्म होता कहता है, हूँ लाइफ खत्म हो रहा है ना। देखिए जब मैं कहता हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट डाइट आई डोंट मीन कि आप जो जंगल में जाके पेड़ मिल जाए उसको काटो और उसको खा जाओ। दैट्स नॉट हाउ इट्स डन, ओके। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीजें होती है, ओके। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो खाने के लिए ही होते हैं, लेकिन कोई भी जीव जंतु खाने के लिए ही नहीं होता। ठीक है, जीव जंतु का अपना एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक उसको भी प्लेजर और पेन के बारे में समझ आता है। उसका अपना दिमाग है, वो किसी से प्यार एक्सप्रेस कर सकता है, तो उसके उसमें भी फीलिंग्स है, अनलाइक प्लांट्स। आप प्लांट्स को स्क्रीम करते हुए नहीं सुनोगे जब आप एक आलू निकाल लो, आप प्याज निकालो उससे, आप जब एक मैंगो आप पेड़ से तोड़ कर खा रहे हो, तो यू वोंट सी एनी क्रुएल्टी इन दैट। पर जब एक जानवर को खाना होता है तो उसको मारना पड़ता है। ही इज ऑल कवर्ड इन ब्लड, द ब्लड व्हिच लुक्स सिमिलर टू ह्यूमन ब्लड, रेड इन कलर। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसको प्राइमेसी देंगे? मेरा सवाल तो वही है कि आप एथिक्स को प्राइमेसी दोगे या आप ये कहोगे कि मेरा तो इंडिविजुअल चॉइस है, मैं तो मेरे को मेरी प्लेजर की बात है तो मैं खा जाऊंगा। क्वेश्चन वही है। प्लेजर के बात है भाई, प्लेजर मीट खा के मुझे थोड़े ऑर्गेजम आ रहा है। प्लेजर की बात है, मीट खा के मेरे हेल्थ बेनिफिट्स है, मेरे बॉडी का नीड्स पूरा हो रहा है। जब मुझे ऑप्शन दिख रहा है, मैं 5 वेजिटेबल्स खा के जो न्यूट्रिएंट्स लूंगा वो मैं एक बार मीट खा के ले सकता हूँ, तो मैं मीट से ले रहा हूँ। मेरा टाइम बच रहा है, एक बार मैं कुक कर रहा हूँ, हो जा रहा है। 5 वेजिटेबल्स में अलग अलग कुक कर रहा हूँ, तो एबिन अलग बना रहा हूँ, फिर राइस अलग से, फाइबर ये सैलेड अलग से ले रहा हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है इतना कुछ बनाने का। मैं एक आइटम बनाऊंगा, उससे मेरा न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो रहा है, ठीक है। एक मतलब आप चाहते हो कि वेज हो जाओ, तो इजी नहीं है इतना, आप जितना बोल रहे हो। एक आप अगर वेजिटेरियन बन जा रहे हो ना, तो आपको अपना बॉडी का अलग अलग न्यूट्रिएंट्स
इसमें अलग अलग वैरायटी का वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा और उसे वेजिटेबल्स का वो पकाना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगता है। और अभी के टाइम में सबके पास इतना टाइम नहीं है कि साग सब्जी पकाए उसके बाद आराम से खा पी के फिर जाऊँ अपने काम पे। तो और भी काम होते हैं। अब एथिक्स फॉलो करने जाऊंगा तो मेरा काम तो पीछे रह जाएगा, और काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो भूखा रह जाऊंगा। अब ऐसे क्या सुसाइड, आप मुझे एथिक्स से खाना खिला पाओगे फिर? आप तो बोले वो देखिए बहुत सुंदर। रुके रुके एक मिनट, देखिए आपने एथिक्स बहुत अच्छा फॉलो किया, रुको मैं आपको खाना देता हूँ, दे पाओगे? देखिए फिर तो एथिक्स, तो फिर आप एथिक्स मत मानो कुछ भी। एथिक्स आप जाके गंदा गुंडागर्दी मचाओ रास्ते वस्ते पे, जहाँ पे औरत पे हाथ डाल दो, फिर एथिक्स की क्या सवाल है अगर आपको एथिक्स की कंसिडरेशन हो ही ना। और दूसरी बात, क्योंकि हम मोशन के फॉर पे है, हम ये नहीं कह रहे कि वेजिटेरियन बन जाओ। वी आर नॉट टॉकिंग दैट। हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमिंग मीट इज अनएथिकल, वी आर नॉट सपोर्टिंग वेजिटेरियनिज्म। ओके, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इंसान के पास चॉइस हो कि वो ये कंसिडर कर पाए कि मेरा डाइट तो प्लांट बेस्ड खाने से भी हो रहा है, तो मैं क्यों एक जीव को मारूं। ओके, और आपने हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात की। आपने शायद मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक, मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द ओबीस जो भी हॉस्पिटल में केसेस आते हैं, दीज आर बिकॉज यू पीपल इट एनिमल फैट। ओके, एंड और क्योंकि बात देखिए, आप वेजिटेरियनिज्म की बहुत हो रही है कि आप अगर एक फ्रूट खाओगे ना दिन में, तो आपको दूसरा कोई डाइट लेना पड़ता है, पड़ेगा ही नहीं। जैसे लक्ष्मीता ने कहा कि एक कोई इंसान है जो सिर्फ फ्रूट में हो रहा है, तो उसका कैसे हो रहा है? वो तो फिर अगर फ्रूट खाने से उसका नहीं हो पाता न्यूट्रिशनल वैल्यू रिच, तो वो तो फिर मर ही जाता दो 20-30 दिन में। तो अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो पा रहा है, तो ये एथिकल एथिकल क्वेश्चन, एथिकल डायलेमा हम सब लोगों के माइंड में आना चाहिए कि क्या मैं इस जानवर को बख्श दूं? ठीक है। और और वो भी तब जब मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक सोच पा रहा हूँ कि क्या गलत है, क्या क्या उसको पेन हो पाएगा। अगर मैं ये सोच पा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये सोचना चाहिए। ठीक है, आपका सोच एनिमल पे आके रुक जाता है। आप थोड़ा और ह्यूमन बन जाओ, तो आप और थोड़ा प्लांट तक आओ, तब आपको लगेगा कि दर्द इसे भी हो रहा है। आपको कॉन्शियसनेस अभी तक मीट तक ही पहुंचा है, वेजिटेबल्स तक आओ, तब आप और बेटर हो जाएंगे, आपका एथिक्स और बेटर हो जाएगा। और जैसे कि रसिका ने कहा, एक आदमी स्कूल पे रह रहा है, सबका बॉडी टाइप एक नहीं होता ब्रो, सबका अलग, हर इंडिविजुअल अलग होता है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी को फैट, वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत मुझे वो आपको नहीं है शायद, क्योंकि आपके बॉडी में है उतना। Okay. देखिए मैं क्लास कह रहा था। देखिए, पश्चिम में एक थिंकर हुए जॉन रॉल्स के, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक दिया था आइडिया, लेक्सिकल ऑर्डर। उसके वेट उसमें क्या हो गया, हो गया, आपको बाद में टर्न मिलेगा, तो ये माइक बंद कर। ओके, okay, so now I'll ask all the EC members and observers if they have any question to raise their hands. Participants, please don't raise your hands. Okay, Bhargav, I'll invite Bhargav to ask questions. हेलो, सुनाई दे रहा है ना विशेष? हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन फॉर टीम के लिए है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि मीट खाना अनइथिकल है, मगर जो लोग चिकन बेच के या फिर मीट बेच के जो लोग घर चला रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? अगर सब लोग सोच लेते हैं कि मीट मीट खाना या फिर चिकन खाना अनइथिकल है, तो उन लोगों का घर कैसे चलेगा? वो लोग तो वो करके, मतलब आप लोग उन लोगों से उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट ही छीन लोगे। सो इसके बारे में आप लोग क्या बोलते हैं? Okay, Lashmita, do you have any counter? Yes, Or thank you, please moderator. answer this question. So, भार्गव, जैसे कि तुमने बोला कि लाइक उन लोग का एम्प्लॉयमेंट ही छीन लूंगी मैं। भाई, दुनिया में सिर्फ बुचर बनना ही एक लाइक कन्फाइंड प्रोफेशन नहीं है उन लोगों के लिए। अगर मैं एक बुचर होती और अगर ऐसे मीट नहीं उठ नहीं, जाता मेरा तो क्वेश्चन वो नहीं है। लाइक उन लोगों का घर उससे चल रहा है, तो तुम कैसे उन लोगों से वो छीन के अभी, मतलब वो लोग क्या अभी कहा, उन लोग को आजकल जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है। तो उन लोगों का घर अगर इतना दिनों से वैसे चल रहा है और सब लोग अगर माइंड में ये बना ले कि चलो मीट खाना अनइथिकल है, तभी वो लोग कैसे चलेंगे? उन लोग का तो घर, मतलब घर में खाना आना ही बंद हो जाएगा ना। एक्सपीरियंस सुनो। एक बुचर लाइक एक सब्जी वाला बन एक हाँ, एक सब्जी वाला बनना एक बुचर बनने से बहुत ज्यादा आसान है।
सब्जी बेचने वाला तो सिर्फ सब्जी बेच देगा, पर जो बूचर होता है वो मुर्गी को पकड़ के लाता है, उसको हलाल करता है, काटता है पीसेस में, फिर तुमको थैली में भर के देता है, राइट? सो अगर बूचर होती तो ऑब्वियसली मुझे एट द स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होता है कि आई हैव बीन ऑन टू सम प्रोफेशन, राइट? लेकिन मुझे बस सब्जियां बेचनी पसंद, इट वुड बी हैव सच अ पीसफुल एंड क्लीन जॉब। मुझे अपने हाथों को रोज ब्लड में डिप नहीं करना पड़ता, एंड आई वुडंट हैव बीन कन्फाइंड ऑन टू जस्ट बीइंग बुचर। मुझे तो गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि तू बुचर है, तू सिर्फ लाइक मांसो ही बेचेगा, ऐसा तो बोला नहीं मुझे। Okay, Bhargav, are you satisfied with answers? मुझे मतलब फिर से एक बात पूछना है कि सब्जी मतलब अभी मैंने क्वेश्चन क्या किया कि वो पहले से मीट बेच रहा है, तो अचानक वो अपना प्रोफेशन कैसे चेंज करेगा, वो मतलब मुझे आंसर चाहिए उसके बारे में। So, Okay, so now I'll invite Vivek Da to give the answer of Bhargav's question. देखिए, जब भार्गव आप कहते हो कि अगर उसका घर कैसे चलेगा, हमारा टॉपिक वो है ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि जब हम कहते हैं कि आप प्लांट बेस्ड डाइट पे आओ, तो हम ये नहीं कह रहे कि फिर जो भी जानवर बेचते हैं, जो भी जानवर काट के बेचते हैं, तो उनका दुकान बंद करो, ऐसा नहीं है। कोई कोई लोग फिर भी खाएगा, किसी को नीड्स होगा, किसी को वो होगा, वो खाएगा। ऐसा हम ये नहीं करें कि तुम प्लांट बेस्ड पे आ जाओ तो तुम अपना दुकान बंद कर लो, ऐसा नहीं होता। और अगर दुकान बंद होने पे आए, so I think what's the problem in opening a vegetable market or a fruit market for that matter? It will be more easier for him, as Lashmita pointed out. I think that makes a concrete answer for your question. Okay, so now I'll invite Defia. Thank you, moderator. So the question is for the motion. So as we know, there is something called food chain that is going on in the environment. So ऐसा होता है कि the plants they get eaten by the herbivores, and the herbivores get eaten by the carnivores, and so on. The food chains go on. And होता है कि like there's also nutritional chart we have. Okay, we have to in order for a human being to survive, we need to we need to have carbohydrates, protein, fats, sweet and everything. So I would like to ask to the for the motion ki, are there any alternative sources of nutrition that are more ethically sound and sustainable than consuming meat? Because meat is one of the most proficient sources of protein. Okay, and nothing cannot nothing cannot alternate or just unke nothing cannot compare meat with other vegetable based thing. So I feel like I think my question is very reasonable, because is there any alternate sources other than consuming meat? Okay, I'll invite Lashmita to give her answers. Okay, so Defia, I'm very pleased to hear your question. The thing is, आपने जो बोला फूड चेन वो बायोलॉजी में जाने की, साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एथिकल की बात हो रही है। तो एथिकल इट्स कम्प्लीटली, आई थिंक कि वो इमोशंस से, ह्यूमैनिटी से ज्यादा रिलेटेड है, और फूड चेन कम्प्लीटली वो साइंस में चला जाता है। सो बोथ आर कम्प्लीटली फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड। येट आपने जो बोला कि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू ये वो, आप लोगों ये जो मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे ज्यादातर, आप लोगों में से किसी ने भी डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक, फिर बाद में एबीसी जूस, एशगॉर्ड जूस, फिर बाद में सैलड्स, ये सब ट्राई किए हैं? हैव यू गॉन ऑन टू द थिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल दैट थिंग? बॉडी को क्लेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एंड सिर्फ मीट खाने से भाई, मीट का अच्छा ओके, मीट के कितने वेराइटी हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कितने ज्यादा वेराइटी है? एक फ्रूट आई अंडरस्टैंड। और हाँ, ऑल्सो द थिंग जो ये विप्लव ने बोला था एट द स्टार्टिंग में कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि अगर मैं मीट नहीं वेट, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट द पॉइंट, दैट वाज अ प्रोमिनेंट पॉइंट, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। आपने जो बोला कि हाँ, तो ऑब्वियसली आप लोगों में से कितने लोगों ने एबीसी जूस ट्राई किया है? एबीसी जूस का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा आपको, राइट? क्योंकि मीट इज द सुप्रीमेसी, राइट? मीट को सुप्रीमेसी बना के चलना है। और हाँ, अभी मुझे याद है विप्लव ने बोला था कि मैं मीट बनाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। मैं अपना टाइम बचाने के लिए किसी का पूरा जीवन ही खा जाऊंगा। वाओ, एंड दैट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू द थिंग दैट यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग। वो एकदम मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, द टॉपिक उसके साथ एक कंप्लीटली इक्विवेलेंट है, राइट? Okay, Defia, are you satisfied with answers? Can I ask one more? Yeah, please. So Lasminda Didi, I think you are confused with my question, and आपने मेरा सवाल का अच्छे जवाब नहीं दिया, and you just ended your question winding up with ABC का juice. So I mean कि is there any other ethical sources other than consuming meat, right? So you say plant based. Okay, plant based cannot be compared with meat, because it doesn't have the enough protein. For meat is one of the most essential part of a human diet. So I feel like you should answer to my question directly, instead of just instead of going around and coming to other topic and trying to change that, trying to distract the people. Okay, we get a question. Lashmita, please answer.
ओके सो जैसे कि उन्होंने बोला कि मीट मतलब मीट के अगेंस्ट में या फिर मीट का ऑल्टरनेटिव ऐसा सुप्रीमेसी कोई फूड है ही नहीं, राइट? हाँ, ओके इवन इफ आई कंसिडर कि मीट जैसे कि एक चीज है जो कि लाइक बहुत सारी चीजों को कंटेन करता है, तो ओके उसके अगेंस्ट में अगर मैं 3-4 फ्रूट्स या 3-4 वेजिटेबल्स ऑन द गो अगर ऐसे सैलड बना के खा लूं, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू फिल मी द सेम वे, राइट? आई नो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर एटलीस्ट किसी एज दे से कि क्या बोलते हैं जो आज का टॉपिक है, तो मैं किसी के लाइक हत्या नहीं करूंगी। My hands won't be stained in blood, right? तो अगर Okay, मेरे Lakshmi. सैलड खाने से We get the answer. I'll sum it up for Devya. The alternative way for meat, according to Lashmida, is fruits. Like 3-4 more fruits. Can I? Now, okay. Can I? I No, think if you are please. Very short in time. We'll ask. Can I add to Lashmita since the question is for the team? Okay. Vivek, Defia, look, we are not here. We are not sitting as nutritionists here. We are in a serious debate discussing the ethical values behind having meat. Okay, and secondly, yes, definitely, animals can't go and do farming for themselves. That they won't eat animals. Obviously, there is a food chain. Animals will. We have carnivorous, we have herbivorous, but we as humans we have a choice to choose less cruelty or more cruelty. Okay, and secondly you told that ki protein ka kaise hoga. Look, the best source of protein is whey protein, which we get from milk, and we don't have to kill animals for it. okay. Now I'll ask Himashri to open her mic and put forward her questions. थैंक यू मॉडरेटर। आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू फर्स्ट कि मेरे पास 2 क्वेश्चंस है, एक फॉर द मोशन के लिए, एक अगेंस्ट द मोशन के लिए। सो कैन आई आस्क बोथ? As we are short in time and we have many people to ask who are going to ask the questions, I request you to ask the question to the against team. Against team. Okay, so my question is to Rajeshri from against team. So she said कि जैन फूड जो पोटैटो, गार्लिक, अनियन ये सब चीजें नहीं खाते जैन डाइट में। सो आईड लाइक टू ऐड कि वो इसलिए नहीं खाते टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट। तो ये पूछना चाहूंगी कि हाउ इज दैट कंपेरेबल, क्योंकि जैन फूड में भी वही एथिकल चीज वो लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमिंग मीट इज अनएथिकल। तो आप ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जैन फूड में खाते हैं तो इसलिए ये हो जाएगा? Okay, Rajeshri, please open your mic. ओके, सो हिमांशी ने जो मुझे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं ये देना चाहती हूँ कि आपने मेरा बोलने का कॉन्टेक्स्ट को समझा नहीं है। मैंने एथिकल का बारे में एक एग्जांपल दिया है कि हम लोग के लिए अनएथिकल, मतलब जो 4 टीम बोल रहे हैं उन लोग के लिए अनएथिकल हो जा रहा है कि मीट खाना। हम लोग के लिए एथिकल कि हम लोग अपना चॉइस से चूज कर सकते हैं हम लोग क्या खा सकते हैं फॉर आवर ओन ह्यूमन नीड्स। ओके, ह्यूमन नीड्स ऑफ आवर लाइक फूड। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फॉर जैनिज्म उन लोग का जैसे कि आलू या रूट से जो निकलता है जो कुछ, उन लोग के लिए वो अनएथिकल है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं ये कंपेयर कर रही हूँ। अभी आई हैव व्हाट यू आस्क्ड मी इज नॉट दैट व्हाट आई सपोज टू आंसर बिकॉज आई हैव नॉट मेंट दैट। आई हैव गिवन अ फार्म एग्जांपल ऑफ व्हाट अनएथिकल एंड एथिकल मीन्स फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। Himashri, are you satisfied with this? I'm not really satisfied, but it's okay. चलो। Okay. So now I'll ask Prashambho to put forward his questions. Hello. Yes, Am I audible? yes, you are audible. मेरा क्वेश्चन अगेंस्ट टीम से है। बेसिक क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि नॉन वेज खाने से, नॉन वेज या फिर वेज खाने से कौन सा हेल्थ वाइज से अच्छा होता है ज्यादा? मुझे बस वो यही क्वेश्चन पूछना है अगेंस्ट वालों से। Biplab, would you like to give the answer? आप सही प्रपोर्शन में दोनों में से कुछ भी खाओ, आपका हेल्थ मॉडरेटर वेट। ओके और आप एक्सट्रीम होके दोनों से कुछ भी खाओ तो वो आपका हेल्थ
Okay, Rajshri, please give answer. Moderator, actually, I want the observer to repeat his question. Okay, Prashamba, please repeat the question. मेरा क्वेश्चन है कि नॉन वेज और वेज से कौन सा ज्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है या फिर हेल्दी होता है, दोनों में से एक। Okay, so may I answer? Yes, please. ओके तो बेसिकली बात ये है कि हम लोग का जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, उधर से ही मीट खाना स्टार्ट हुआ है। कि जब लोग तो स्टार्टिंग से ही लग्जरियस बिल्डिंग में नहीं रहते थे। स्टार्टिंग से ही तो उन लोग का एक घर ऐसा कुछ नहीं था ना, वो ओपनली अंडर द स्काई रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। तब उन लोग क्या खाते थे? वो अपने मतलब किसी वेपन से कोई एनिमल्स को मारते थे, तब खाते थे। ऐसे उन लोग भूख मिटाते थे। है या नहीं? ऐसा ही होता था। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब ये परंपरा चलता आ रहा है मीट खाना, तो आई थिंक इट हैव अ वेरी इंटेंस फंक्शन इन आवर इम्यूनिटी, जो चलते ही आ रहा है। एंड नाउ आफ्टर as the time is updating, people are wanting to vegan and all, but this is not the answer what I want to give. I want you to give the answer is that yes, नॉन वेज ज्यादा अहमियत होल्ड करते हैं वेज से, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट ह्यूमन एक्चुअली स्टार्टेड टू ईट। थैंक यू। Okay, so now I'll ask Jyotirmoy to put forward these questions. हेलो। मेरे Yes, सब लोग तो एथिक्स के बारे में बोल रहा है ना, मैं एक एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एथिक्स जो बोल रहे हैं वो डिपेंड ऑन साइज है क्या? आप लोग एनिमल का साइज डिपेंड ऑन वो है क्या? तो एथिक्स तो फुल्ली सबके लिए होना चाहिए। स्पीसीज जितना है पृथ्वी में सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा है कि तो आप तो जब खेती बाड़ी करेंगे ज्यादा, तो उसमें जो इंसेक्ट्स है वो भी तो मरेंगे ना। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए तो हम लोग पेस्टिसाइड्स तो डालना ही पड़ेगा ना। तो क्या ये वो डिपेंड करता है क्या? कौन से टीम के लिए आपका क्वेश्चन? ये सब के लिए है, कोई आंसर कर सकते हैं, कोई भी। Okay, I'll ask Vivek from Team A to give his answers. Jyotirmoy, because he asked in Assamese, I will answer him as in Assamese. So, ethical jitu concern, itu obviously ami sob ফিল্ডতে যোনটো ডাঙৰ হওক সৰু হওক, পিপৰাটো আমি খেতি কৰিলে মৰে। সেইটোৰ কাৰণে আমি যেতিয়া আমি খেতি আৰম্ভ কৰো, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এইটো কালচাৰ হয় যে আমি যেতিয়া খেতি আৰম্ভ কৰো, আমি চব পিপৰা চিপৰা জীৱ জন্তু যি মৰা যাব তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানে অলৰেডি ক্ষমা খুজি লওঁ, তাৰপিছতহে আমি খেতি আৰম্ভ কৰো। এইটো যোনে খেতি কৰে সিহঁতে জানে, এইটো বহুত পুৰণা কালচাৰ। এইটো ৰেফাৰেঞ্চ আমি মহাভাৰততো পাওঁ। ৰিলিজিয়াছ বেছতে হওক, কুৱেশ্যনটো তোমাৰ তেনেকুৱাই ৰিলিজিয়ন বেছটো মই আনিছো ইয়াতে। তুমি কৈছা কি খেতি কৰিলে সেইটো পিপৰাটো মৰে, তেতিয়া এথিকেল কনচাৰ্ন নাহে নেকি? মই কৈছো কি আহে কাৰণে আমি এইটো ষ্টেপ কৰো, বুজিছা? আৰু ছেকেণ্ডলি কি বুলি কয়, আমি যেতিয়া এজন জীৱৰ কথা কওঁ, জীৱ হত্যাৰ কথা কওঁ, জীৱ হত্যা কৰিলে, জীৱ হত্যাটো অবভিয়াছলি আমি যদি ৰিলিজিয়নৰ লগত কানেক্ট কৰো, হিন্দুইজমৰ লগত স্পেচিয়েলি, এইটো এটা পাপ হয়। কোনো ধৰণৰে জীৱ হত্যা কৰিব নালাগে যদি আমি ৰিলিজিয়াছলি চাওঁ। আৰু যিহেতু আমি অবভিয়াছলি খাবতো লাগবই কিবা নহলে কিবা। তো যেতিয়া আমাৰ এইটো চইচ আছে যে আমি খেতি কৰি পিনে, আমি গছ ৰুই পিনে আমি যদি চলিব পাৰো, আমি খাব পাৰো, আমি কিয় জীৱ জন্তুবোৰ মাৰো ওচৰ? কিয় আমি ভগৱানৰ নিজৰ সৃষ্টি কৰাবোৰক বস্তুবোৰক আমি হাৰ্ম কৰো? কৰিব নালাগে। কালি মই যদি তোমাক মাৰি পিনে খাই যাওঁ, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে মোক ভাল পাব নেকি? নাপায়। সেনেকুৱা কথা। কিন্তু গছৰ এনেকুৱা একো নাথাকে ফেমিলি যে দুপাত গছ আহিছে, এটা বাচ্ছা এটা জন্ম দিছে গছপাতৰ আৰু আমি বাচ্ছাটো খাই গলো, সেনেকুৱা একো নাথাকে। Moderator, may I counter Vivek? Now I let Rashi answer, please. Okay, Don't may I counter, give the counter? answer. Give the answer of the question. Okay, I have a counter for Vivek. That means in my answer only. Okay, please
ओके, सो बेसिकली विवेकदा ने ज्योतिर्मय का आंसर ऐसे करके दिया कि हाँ पता है कि वो फार्मिंग के वक्त ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब एनिमल्स का कुछ हो जाता है तो हम लोग भगवान से माफी चाहते हैं। तो ठीक है, हम लोग भी तो जब खाते हैं हम लोग को कभी अगर बुरा लगता है हम लोग भी माफी चाह लेते हैं भगवान से। तो बस खत्म। आपने तो वो आंसर दे दिया, तो मैं यही इधर पे मतलब बोलना चाहती हूँ। देखिए Yeah. मैंने कहा, मॉडरेटर मे आई? You'll have time for the counters. First, let me finish with the questions. Okay. So now I'll invite Spidey to ask his questions. मेरा क्वेश्चन लस्मिता के लिए है। जो वो बोल रही है कि ऐसा एबीसी जूस है कुछ वगैरह वगैरह फल फूल है वो सब हेल्थ के लिए अच्छा है वो सब खाना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या हेल्दी है मेरे लिए क्या नहीं है, मेरे क्वेश्चन ये है कि ये एथिकल है कि नहीं खाना। अगर मेरा एथिक्स मुझे अलाउ कर रहा है कि मुझे ये सब खाना अलाउ है, ये नॉन वेज मुझे खाना अलाउ है, तो मैं क्यों है उस चीज़ों के लिए फल फूलों के लिए जाऊँ। अगर हम फल फूल खाते हैं तो वो हमें ढेर सारा फल फूल खाना पड़ेगा तभी एक न्यूट्रिएंट मिलेगा बॉडी को। मगर अगर मैं मीट खाऊं तो उससे इतना सारा खाना नहीं खाना पड़ेगा, उससे मेरा कम खाने में ही मेरा बॉडी को सारा वो हो जाएगा। तो मैं क्यों खाऊं, मैं मुझे हेल्दी चाहिए नहीं। मेरा एथिक्स मुझे अलाउ करता है कि मैं मीट खाऊं तो मैं खाऊंगा, मैं हेल्दी क्यों चुनूं, ये है क्वेश्चन। Yeah, Lashmita, please give your answers. I just cannot believe what you just said. मतलब you will opt for unhealthy food rather than going for healthy food. That what you are saying कि मतलब मेरा एक आइटम में मतलब पेट भर है चाहे वो अनहेल्दी ही क्यों ना हो। How is that okay with you? अगर That is मतलब ethically भी wrong है, वो mentally भी wrong है आपके लिए। जो आप बोल रहे हो मेरा that is completely मेरा एथिकली क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये कोई और मेरे लिए डिसाइड नहीं करेगा। मेरे लिए एथिकल क्या है वो तो मैं खुद करूंगा ना। मुझे अलाउ करा है मेरा एथिक्स की एनिमल का वो खाना जरूर मेरे लिए अच्छा है, मेरे सेहत के लिए अच्छा है। और नेचर का यही चेन है कि कोई ना किसी चीज को खाएगा ही। तुम या तो फल खाओ या फूल खाओ, अगर तुमको एथिक में इतना ही बिल है तुम कुछ भी मत खाओ, तुम बिना खाए ही मर जाओ। Okay, Spidey. Lashmita, give your I want answers. to add to Lashmita if being a team. Okay, please add. Spidey, I think can I answer him in English or Hindi? Spidey, English, It's Hindi. In whichever language you are comfortable. आई थिंक यू आर वेरी मिसअंडरस्टूड, क्योंकि आपने जो बोला कि मेरा एथिक्स तो अलाउ करता है, फिर तो किसी का एथिक्स अलाउ करेगा कि मैं रेप करूं सोसाइटी में जाके हर घर में, फिर क्या वो सही होगा? ठीक है, ये बात तो खाने के नहीं लिए देखिए है। नहीं देखिए देखिए Moderator, may I add? May I add in it? मैं आपको एड्रेस कर दूं आंसर। देखिए, being an ethical individual is a characteristics of your soul, और वो ethical values across human universal होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर भी मैं ethical हूँ। मेरा सोल जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये अनएथिकल चीज है। वैसे ही जब हम एक एनिमल को मारते हैं तो वो किसी तरीके से एथिकल नहीं है। वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि हाँ ये मैंने जीभ काट के खा जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली बीइंग एथिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर सोल, और वो यूनिवर्सल होता है। वो कोई ये नहीं कर सकता कि मेरा एथिक्स अलग है दूसरों से, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके लिए एथिक्स अलग अलग होता है, ये आप नहीं कह सकते हो कि ये मेजोरिटी ने अगर ये बोल दिया ये एथिकल है तो वही एथिक हो जाएगा। आप ये देखिए मैं डिफाइन नहीं वही कर कर रहा हूँ, एथिक्स अगर सबके लिए अलग अलग होते हैं तो This किसी was का this was एथिक्स a तो question गैंग रेप said करना भी अलाउ also करता, फिर क्या वो observer and उसको the जेल नहीं participant होता? cannot no. Observer and participant cannot make arguments between them. So please you Okay, continue. yes, yes. Okay, so we'll move forward with Monil's question. Monil, do you have any question? Hello, Monil. I guess his network is not good. Now I'll call Himashri to ask the questions. Thank you for the second chance, moderator. So I'd like to ask my question to Lashmita from the 4 team. So my question is that आपने डेफिया का फूड चेन का आंसर दे दिया कि इट्स फ्रूट्स। ओके, तो मेरा एक उसी फूड चेन के बारे में एक क्वेश्चन है जो अलग डायरेक्शन में जाता है। तो वो क्वेश्चन है ये कि फूड चेन हमें ये बोलता है कि ह्यूमंस आर omnivorous इन नेचर। तो उन लोगों के पास ये एबिलिटी है कि वो
ग्रास एंड एवरीथिंग प्लांट बेस्ड भी खा सकते हैं और वो लोग ये भी खा सकते हैं एनिमल बेस्ड फूड। तो एनिमल बेस्ड फूड में हम लोग तो सब एनिमल्स को नहीं मार रहे हैं, तो उनमें से हम कुछ एनिमल्स को खा रहे हैं जो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा होता है। Few people are doing it, they are also performing cannibalism, but we don't support that obviously, but that doesn't mean कि हम दूसरे चीजों को नहीं खा सकते। और आपने कुछ पॉइंट्स नहीं खा सकते, तो आपका ये इसके ऊपर क्या कहना है? और आपने कुछ पॉइंट्स बोला जैसे मुर्गी भाग जाएगा एंड ऑल दैट, फिर इंस्टाग्रामर बोल रहा है, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बोला जो मेरी दीदी कर चुकी है और उसके वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए हैं। Okay, Himanshu, So we I get a would, question. Yeah. yeah, Rashmita, please answer. ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। द थिंग इज, आपकी दीदी ने जो किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 10 में से बहुत ही कम लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत एडवर्स बैड इफेक्ट्स मिलते हैं। बाकी मेरे भी दोस्तों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, मैंने खुद किया हुआ है, एंड आई हैव सीन मैग्निफिसेंट चेंजेस इन मी। एंड मैंने जो सारी बातें बोली है ना ऑन टू गोइंग दैट हेल्दी फूड, फिर आपने एबीसी जूस पियो, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, फिर आपने सैलेड खाओ, अगर मीट की जगह पे 2 3 4 फ्रूट्स खाने पड़े तो वो खाओ, क्योंकि दैट इज लाइक एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब अगर ये होने लगा कि मैं ये नॉन सेंसिबल वे में किसी एनिमल को मार दूं। वो जो एक मूवी आया था, नॉर्थ ईस्टर्न मूवी आमिश, ओके, तो उसमें लाइक आई थिंक एक कपल था शायद, ओके, इट वाज अ लव अफेयर और समथिंग। तो एक पार्टनर अपने बॉडी का पार्ट काट काट के अपने पार्टनर को खिला रहा था, एंड दैट पर्सन वाज रियली एंजॉयिंग इट। तो धीरे धीरे उनका ये हैबिट बन गया था, एंड दे वर थिंकिंग कि भाई ये तो एथिकली, भाई मुझे पसंद है मैं क्यों ना खाऊं, हाँ ये तो एथिकली से मेरा पार्टनर अपना ही शरीर काट रहा है, काटते काटते अब अपना शरीर कितना काटेगा। ही दैट कपल टारगेटेड अदर पीपल, जो ज्यादा मोटा है, ज्यादा फ्लैशी है, उसको एनकाउंटर किया, मारने के बाद उनको पका के खाया, एंड देन दे गॉट कॉट आफ्टर फ्यू इयर्स। तो ये तो उनको भी तो भाई लगा कि एथिकली ये सही है, मैं क्यों ना करूं, ये ऐसे तो नहीं होगा। एंड जैसे कि मेरे मेट ने बोला, विवेक दादा ने बोला कि वो हाँ, तो मुझे एथिकली लगता है कि मैं रेप करूंगा तो ये सही है। तो ऑब्वियसली ना, दैट इज द थिंग। एथिकल मतलब क्या है? एथिकल इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू द थिंग बाय डूइंग समथिंग सेंसिबल। थैंक यू। Okay. So here we end our questionnaire round. Now I'll ask Rajeshri from Team B to give her counters or any arguments she has. ओके, थैंक यू मॉडरेटर। सो पहले मैं विवेक को काउंटर करना चाहती हूँ। वो रेप के बारे में कहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, इट्स अ इलीगल थिंग, क्यों ये अपना पर्सनल चॉइस होगा? मतलब इट्स मतलब अगर किया गया होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। मुझे चिकन खाने के लिए कौन फांसी में जलाएगा, है ना? तो मुझे चिकन खाने के लिए तो मुझे कोई जेल में लेके तो नहीं जा रहा है। ओके, एंड सेकंड थिंग, वो लश्मिता ने कहा था वो खुद का मांस काट के खा रहा है। भाई ये भी गलत है। कहाँ पे लिखा है? कौन सा हम लोग का इंडस्ट्री इंडिया में ह्यूमन का स्लॉटर करके ह्यूमन मतलब बेच रहा है? कौन बूचर ह्यूमन को काट के हम लोग को बेच रहा है? अरे भाई ये गलत है, इसको दो पनिशमेंट, फांसी में चढ़ाओ ऑब्वियसली। लेकिन चिकन वो सब हम लोग खा सकते हैं, वो हम लोग का खुद का इंडिया में इंडस्ट्री है, वो लोग चला रहा है। और एक इस बात का मेरे पास एक बात है, मैं बोल रही हूँ, कंज्यूमर्स कैनॉट कंट्रोल व्हाट producers do, even if all meat consumers sourced from human places, there will still be producers using inhuman methods. Okay, so that is the thing. Now I want to tell is that कि तो आप लोग का अच्छा, और एक बात, विवेक दा बार बार ये भी बोल रहे हैं कि झूठ बोलना भी तो अनएथिकल है। अच्छा विवेक दा, आप क्या लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला? जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे झूठ बोलना है तो आप बोलोगे ना। तो इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। Okay, थैंक यू। invite Vivek Da to give his counters. I actually, thank you, moderator. I'm quite surprised that my points were being twisted and turned. मैं बेसिकली स्पाइडर को ऑब्जर्वर ने जो क्वेश्चन किया कि मेरा एथिक्स तो मुझे अलाउ करता है, आई जस्ट गेव हिम अ कनोटेशन कि अगर आपका एथिक्स मांस खाना अलाउ कर रहा है तो अगर किसी का एथिक्स तो फिर और भी कुछ गलत करने को कहेगा तो वो भी क्या हम अलाउ कर देंगे। और सेकेंडली उन्होंने लीगलिटी के बारे में बोला कि झूठ बोलने से क्या मैंने झूठ बोला? यस, झूठ बोला और वो एथिकल नहीं था। इसलिए हमेशा मैं ये ट्राई करना मुझे चाहिए कि मैं झूठ ना बोलूं आगे जाके। हाँ, और दूसरा मैंने ये पॉइंट पहले भी उठाया कि यहाँ डिबेट लीगलिटी वर्सेस एथिक्स की नहीं हो रही है, यहाँ डिबेट एथिक्स वर्सेस अनएथिक्स की हो रही है। ठीक है,
तो यही यही मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है राजश्री के लिए। Okay, and now I invite Biplab to give his counter. हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो लक्ष्मिता है वो अपना स्ट्रीम क्वेश्चंस के हिसाब से बदल रही है। जब इकोसिस्टम का बात आता है तो वो बोलती है आज टॉपिक साइंस सब्जेक्ट पे थोड़ी, आज ह्यूमैनिटीज पे है, मैं कैसे बोल सकती हूँ इस पे, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। फिर वो वहां पे एबीसीडी जूस का ज्ञान दे रही है। आप न्यूट्रिशनिस्ट, तो आपको पता है किसको कितना न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, एक न्यूट्रिएंट्स का आपका काम क्या है उसका, वो आपको पता है वो क्या करता है, उसका पेशेंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स का कमी है वो उसे प्रिस्क्राइब करता है, आप ये खाओ, आप ये 2-3 वेजिटेबल्स खाओ या ये मीट खाओ, आपका ये फुलफिल हो जाएगा, नीड्स फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स चेंज कर रही हो। आप कभी आप डॉक्टर बन जाती हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन जाती हो, कभी आप अरे मैं तो ह्यूमैनिटीज से हूँ, ये मेरे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन ही नहीं है। सही है, ये आपका एथिक्स सही है, यहाँ पे ये आपका एथिक्स सही है, कम से कम एक स्ट्रीम में रह जाओ यार। और फिर विवेक दा, वो तो मतलब चाह ही नहीं रहे कि इस टॉपिक को हम डायनेमिकली देखें, वो एक ही देख रहे हैं कि एथिक्स कैसे सही। आप किसी का एथिक्स कैसे डिसाइड कर सकते हो? कोई हर सबका एथिक्स सेम कैसे हो सकता है? आप हर इंसान खुद में अलग है, तो हर इंसान का एथिक्स खुद में सेम कैसे हो सकता है? आप जो कह रहे हो एक रेपिस्ट, अरे यार कोई रेप किया तो उसे आप क्या घूमने दोगे? उसे सजा दिया जाएगा ना। और जैसे लक्ष्मिता ने कहा था इंटीमेट फास्टिंग से 10 में से 2 लोग कोई वो होता है, तो वैसे ही 10 में से एक भी नहीं, 0.5 लोग ही होते हैं जो एक दूसरे का मीट काट के खा रहे हैं, और उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करता, उन पे लीगल एक्शन लिया जाता है। तो आप सुनना वही चाहते हो जो आप बोल रहे हो, और हम वो नहीं बोलने वाले ना। एक एथिक्स को आप यूनिवर्सली इक्वल कर ही नहीं सकते, सबका अपना हिसाब से एथिक्स बनता है। आप जो फॉलो करो वो मैं फॉलो करूँ ये जरूरी है ही नहीं। और झूठ बोलना, ज्यादा भी किसी ने कहा था झूठ बोलता कोशिश नहीं करता, ये बस सुनने में अच्छा लगता है कि झूठ बोलना सही नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ। अगर किसी झूठ से किसी इंसान का जान बच रहा है तो वो झूठ आप बोलोगे, इसमें क्या आपका एथिक्स आएगा? वो मैं झूठ नहीं बोल सकता ब्रो, मेरा एथिक्स खराब हो जाएगा, आपका एथिक्स की वजह से वाइफ का जान चला जाएगा। सो एक टॉपिक को आप एक ही लेंस से देखोगे तो आपको और हर समय सही लगेगा। मैं यही बोलूंगा कि एक टॉपिक को आप डायनेमिकली देखो, और किसी की क्या एथिक्स फॉलो करना है, किसका कौन सा एथिक्स सही है, वो उस इंडिविजुअल पे छोड़ दो। आप डिसाइड, आपको बताने की जरूरत नहीं है ये एथिक्स गलत है, क्योंकि वो इतना दिन से करके आया, मतलब हम 100 साल लोग जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि उन्होंने कुछ एथिकली गलत नहीं किया तो वो नहीं जी रहे हैं। Okay, Biplab. Now I'll ask Lashmita to give her counter. थैंक यू मॉडरेटर। सो जैसे विप्लव दा ने बोला कि मैं कभी डाइटिशियन बन जाती हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट बन जाती हूँ, डॉक्टर बन जाती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू लाइक दिस, बिकॉज इन माई ओपिनियन इट्स जस्ट लाइक हैविंग वर्सेटाइल नॉलेज और न्यूमरस व्यू पॉइंट्स। एंड ऑल्सो अगर जैसे कि आपने बोला कि अगर लाइक 10 में से सिर्फ ये कुछ ही लोगों को ये मतलब सूट करता है ऐसा लाइफस्टाइल या फिर जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू आपने बोला, तो द थिंग इज अगर मुझे जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी फॉर इंस्टेंस, तो मैं उस चीज के लिए भाई हर इंसान के पास आजकल फोन है हाथ में, एंड फोन में कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लीगल से लेके इलीगल तक एवरी इंफॉर्मेशन सब कुछ। ये गांजा को कैसे रोल करना है कम से कम वो तक है, इतना इतना मतलब हद तक गिरा हुआ इंफॉर्मेशन मतलब यूट्यूब में ये अवेलेबल है। और अच्छे इंफॉर्मेशन तो एंडलेसली है, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं और कितने सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं जो सब लोग ये बोलते हैं कि भाई गो वीगन, गो ऑल नेचुरल, गो ऑर्गेनिक। कभी भी जिस किसी को भी थायराइड कैंसर ये हुआ है उन लोगों को कभी कोई बोलेगा कि भाई तू जाके बटर चिकन ठूस ले तू ठीक हो जाएगा? बुखार में लोगों को बोला जाता है कि ठीक है तुम चिकन सूप पी लो, इट माइट हेल्प यू, ओके, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज एंड नॉट टू एवरीवन, राइट? अगर किसी को भी कोई सीवियर बीमारी हुई, कभी भी किसी ने किसी को बोला है कि तू बटर मसाला खा ले, बटर चिकन खा ले, नहीं बोलेगा, राइट? वो उसको यही बोलेगा कि तू फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम कर, तू योगा करना शुरू कर, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर। और जैसे नहीं ये स्पाइडी ने बोला मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करूंगा, मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा। आप अपना लाइक हॉस्पिटल का चार्ट शीट अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? जब जब बिल आएगा वो अच्छे से पढ़िएगा, आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से ज्यादा तो चिकन मतलब ये खाना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। यू योरसेल्फ से अगर यूथ का थिंकिंग ही ऐसा रहेगा कि मैं अनहेल्दी खाऊंगा, दे हैव ऑलरेडी कंसिडर, आपने खुद से ये मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि मीट अनहेल्दी है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू पहले से ही जो मतलब मैं कोशिश कर रही थी प्रूव करने का, आपने एकदम डिस्क्लेमर देके अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया कि मीट अनहेल्दी है। थैंक यू। Okay, Rashi, can you please? मॉडरेटर मुझे काउंटर देना है प्लीज। I'll come back to you. I'll come back to you. Rashi, please give a counter.
ओके, लश्मिता ने लास्ट एक पॉइंट बोला था, क्या वो रिपीट कर सकती है उसको एक बार? यही कि मतलब वो जो फ्राइडे ने बोला कि उसको अनहेल्दी ज्यादा प्रेफरेबल है rather हाँ than healthy things, तो वही। ओके, अच्छा ठीक है। सो बेसिकली लश्मिता ने ये कहा है कि हाँ, ये हम लोग सब एग्री करते हैं कि डॉक्टर अगर हम लोग को फीवर ऐसा हुआ तो बोल दे तुम चिकन ऐसे बना के थोड़ा सूप से ऐसे खा लो। अब ये उसको हम लोग कैसे खाए, क्या मसाला डाले उसमें, उसको कैसे क्या मसाला डाल के उसको चिकन का कुरमा बनाए या चिकन बटर मसाला बनाए, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, आप प्लेन खाएंगे, अब आपको पता है ना, आप प्लेंट का बिरयानी खाएंगे या प्लेंट का क्या खाएंगे, तो ये नहीं होता है, ये आप कैसे बता सकते हैं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है इस सेंटेंस का। ठीक है, और असली क्रुएल्टी क्या है पता है, असली क्रुएल्टी मतलब मीट को खाना नहीं है। आप क्या है कि अगर मीट को मारा जाए, मीट के साथ मतलब चिकन वो सब के साथ स्लॉटर करा जाए, उसको फिर किसी और चीज जैसे राइफल बनाने के लिए किया जाए, उसका फैट को मार के उसको फैट को लेके, ये सब क्रुएल्टी है। लेकिन खाना खाने से तो हम लोग खुद को नरिश कर रहे हैं ना, खुद के अंदर नरिशमेंट डाल रही है, इट्स दैट बैड? इस हम लोग का फंडामेंटल राइट हम लोग को देता है कि हम लोग अपने जो हम लोग के लिए खुद के लिए अच्छा है वो हम लोग कर सकते हैं। सो व्हाट्स दैट बैड इन दैट? मैं इधर तक रखना चाहती हूँ मेरा बात है। Okay, now I'll ask Vivek Da to give his counters. Thank you, moderator. I heard for about a minute Biplab ranting my teammate, but in no way proving his argument that consuming meat is unethical. So thank you for that, Biplab. Secondly, I would come कि ethics के आपने बोला कि सबका ethics अलग है, मैं तब से यही चीज कह रहा हूँ कि ethics सबका अलग नहीं होता। किसी का कैरेक्टर्स अलग हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी एथिक्स है जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब एथिक्स का ही पार्ट होता है। और जब जब आपका एक किसी के लिए सिंपैथी नहीं आ रहा हो, किसी के लिए आपको काइंडनेस, एक जीव जंतु के लिए आपको काइंडनेस नहीं आ रहा हो, उसके लिए प्यार नहीं आ रहा हो, उसको खाने में मजा आ रहा हो, तो ये इट इज अनएथिकल। ये है पहली पॉइंट। और दूसरा, राजश्री ने कहा कि अगर हम लोगों को तो नरिशमेंट मिल रहा है एनिमल को खाने से। Let me point out some very good Bollywood actors, Vidyut Jamal and John Abraham. They are pure vegetarian. Look at their body. Do they look undernourished in any way? You cannot even argue that. Lastly, किसी ने तो कहा था कि प्लान प्लान खा के ये होगा वो होगा। सो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज वी आर सेइंग कि कंज्यूमिंग मीट इज अनएथिकल डजंट मीन आपका काउंटर आर्गुमेंट ये हो कि हम लोग प्लान खा के कैसे जिंदा रहे। ये नहीं है आज का डिबेट का मोशन। आप ये प्रूव करिए कि आप एथिकल, आपके लिए एथिकल कैसे होता है कंज्यूमिंग मीट। Okay, so now I'll invite Biplab to give his counter. हाँ, तो जैसे लश्मिता ने बोला, इस हिसाब से तो मैं यही सोच पा रहा हूँ कि लश्मिता, अगर कुछ कहीं ऑपरेशन करना हो तो आप कहीं मत जाना, आप लश्मिता के पास जाना, वो यूट्यूब से देखे आपका ऑपरेशन कर देगी। यूट्यूब में सब कुछ है ब्रो, ऑपरेशन भी दिखाएगा, चिंता मत करो। और डॉक्टर्स को बोल देना चाहिए कि बंद कर दो अपना चैम्बर, वो यूट्यूब में सब कुछ है, यूट्यूब में डाल दिया करो। आप यूट्यूब से देखे अगर सब कुछ कर पाते तो आप कॉलेज क्यों जा रहे हो? यूट्यूब से पढ़ लो, कंटेंट है यूट्यूब में, आपको नॉलेज चाहिए ना, ले लो। फिर क्या, जैसे बोल रहे हो कि यूट्यूब में सब कुछ है, तो बस उस हिसाब से आपके यूट्यूब से अगर दुनिया चलाना चालू कर दिया तो दुनिया कहीं और ही चली जाएगी, यूट्यूब की तरफ। और फिर विवेक दा ने जो बोला, आपके हिसाब, आपने मान लिया है, आपने जो बुक पढ़ा उसने मतलब प्रूफ कर दिया है कि इथिक्स सबका सेम है। मैं वो बुक जानना ही नहीं चाहता, वो बुक को ऐसे ही फाड़ के फेंक देना होता। जो बता रहे कि इथिक्स सबका सेम है, कैसे किसका सेम इथिक्स सेम हो सकता है? लॉजिकली आप एक फैक्ट देके बताते तो मैं समझता भी, आप खुद से बता रहे हो इथिक्स सब सेम होता है। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है तो आप भेज देना ग्रुप में, मैं देख लूंगा। एथिक्स जो बेसिक सेम होता है। Okay, so now as we are short on time, I'll ask Lakshmita to give her counter and her concluding statement. थैंक यू मॉडरेटर। सो जैसे कि विप्लव जी ने बोला मुझे कि लाइक यूट्यूब देख के, अगर यूट्यूब में ही सारा ज्ञान है तो यूट्यूब से ही पढ़ लो ना।
तो ओके, हाँ, तो जैसे कि बहुत सारे लोग, आप सभी को पता होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब से देख के ही पढ़ के पास करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो मैं यूट्यूब में देख के अपना जीवन सफल कमाई धमाई करने लगूँ, ये सब तो नहीं बोल रही, आई एम जस्ट सेइंग कि वहां से अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, ठीक है। और जैसे कि ऑब्वियसली मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आप ही लोगों ने प्रूव कर दिया कि मीट कंज्यूम करना अनहेल्दी है, और मैंने जो बोला वो हेल्दी है, तो इसी से मेरा पॉइंट और वैलिड हो जाता है कि ऑब्वियसली इफ यू आर अगर तुम्हारा लाइक यू हैव अ वेल फंक्शनिंग ब्रेन, देन ऑब्वियसली एनी पर्सन विल गो टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू कंक्लूड टू माई पॉइंट कि अगर आपको लाइक मीट कंज्यूम करना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट्स कंप्लीटली द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, अगर उसको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। अगर आपको लगता है कि मीट कंज्यूम करके एक इंसान जो आई मीन एक वस्तु जो एक्सेसिबल है, आई कैन किल दैट पर्सन, या फिर आई कैन किल दैट जीव, तो मैं उसको मार के खा सकता हूँ, तो ओके, आई विल डू दैट। एंड इफ यू थिंक दैट दैट इज एथिकल, then congratulations on your thinking like that, and I would never like it thinking like that. Thanks to God, I do not think the same way as you people do. Thank you. Okay, now I'll ask Rajshri to give her counter and concluding statement. ओके ओके सो आप लोग का आप लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि एनिमल्स को मारा जाता है, एनिमल्स को एकदम मतलब उन लोग को हाइब्रिड का इंजेक्शन दिया जाता है, वो सब भी प्रॉब्लम है ना। वो देख के आप लोग को कष्ट होता है, अरे भाई क्यों खा रहे हैं ना। तो ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग मतलब हम लोग अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट लाओ ऐसा पॉलिसीज जहाँ पे एनिमल्स को ऐसे दिया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज में, एनिमल इंडस्ट्रीज में उन लोग को अच्छा नरिशिंग फूड खिलाया जाए, अच्छा मतलब अच्छी तरीके से रखा जाए, उन लोग को एक केज में बंद करके ना रखा जाए। ऐसे कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एक ओपन फील्ड रख सकते हैं उनके लिए, जहाँ पे लाइक दे गेट आउटमोस्ट वे ऑफ लाइक एयर, फूड, ऐसे रख सकते हैं ना। वो स्लॉटरिंग, उन लोग को हार्म करना बंद किया जा सकता है। तो हेल्दी हेल्दी चिकन या हेल्दी मीट्स ऐसे हम लोग खा सकते हैं। वही प्रॉब्लम है ना, तो वो हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज लाके सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। तो हो गया आप लोग का। और एक बात यही है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग एनिमल क्रुएल्टी अगर है ना, वो आप लोग खाने में मत देखिए। खाना हम लोग का पर्सनल चॉइस है। कोई प्लांट्स को अच्छा लगता है वो खा लेगा, कोई चिकन को अच्छा लगता है वो खा लेगा। आप लोग देखिए कि कैसे एनिमल्स को दूसरा कामों के लिए हार्म किया जाता है आज के दुनिया में, ठीक है। एंड लास्टली मैं यही बोलूंगी कि जितना जितना आप लोग बोलेंगे ना कि प्लांट्स वो सब खाना चाहिए, कभी भी स्टैटिस्टिक मैनर में ये प्रूवन नहीं होगा, बिकॉज मीट मीट कंटेन्स मल्टीपल विटामिन्स इन इट। अगर एक डॉक्टर एक इंसान को मीट खाने बोलता है किसी भी कारण के लिए, वो बोलता है कि नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, उसको उसके बदले पनीर लाना पड़ेगा, सोयाबीन लाना पड़ेगा, पीस लाना पड़ेगा। अगर उसके पास इतना रिसोर्सेस ना हो तो तब क्या होगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि consuming meat is our own personal choice and is our own perception of ethical and unethical. Okay, thank you so much. Now I'll invite Vivekda to share his counter and concluding statement. Thank you, moderator. Let me just first extend that actually I'm censuring Biplav's ranting remarks from my teammate. Anyways, those points doesn't prove that consuming meat is unethical. First of all, he talked that YouTube देख के knowledge मिल जाता है, लोग college के जाते हैं. To in order to take care of my own health, I don't have to take a degree. Okay. Secondly, there are research paper, journals, doctor reports in not only in YouTube. Okay, in the Google itself. So those are doctor approved nutritional guide. Okay. Secondly, उसने बोला कि एथिक्स का वो जो बुक्स है वो बुक फाड़ के चला जा वो फाड़ के फेंक देगा। तो अगेन ये मेरा एथिक्स में आता है कि मैं ऐसे आदमी को बुक ना दो जो मेरा बुक फाड़ दे। और दूसरी चीज में राजश्री में आऊंगा कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे एक पॉलिसी करना चाहिए। आई थिंक योर प्रपोज सोल्यूशन इन नो वे गिव्स द सोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल एथिकल डायलेमा। फिर उसने न्यूट्रिशन के बारे में बोला। आई वांट टू आस्क हर कि ऐसे कितने लोग हैं जो वेज खा के ही अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट कर रहे हैं, वेज खा के बॉडी बिल्डिंग टाइटल्स जीत रहे हैं वो लोग। और लास्ट में मैं कंक्लूड इसी से करूंगा कि देखिए
don't eat meat. It leads to exploitation of animal at a level you can't even imagine. It brings health concerns such as cancer, obesity. I don't know why I'm not a doctor, but these are the basic things we hear in the newspaper every day, that so and so man died from heart attack due to excess meat eating. Okay, so the way ahead is to shift to a plant-based diet. It will also help sustainability. Also, definitely will bring a way to our ethical dilemmas. Since our debate motion was mostly revolved has should have revolved around that consuming meat is ethical or unethical, most of the members deviated from the topic. That's all. I think opposition didn't even prove that how eating meat is ethical. So that's it from my side. Okay, so now I'll invite Biplab. हाँ, तो जैसे कि विवेक दा कह रहे थे कि ठीक है, बहुत अच्छा लक्ष्मिता और विवेक ने बहुत अच्छा डिबेट किया। इन्होंने अपना एक मुद्दा पकड़ के रखा, उससे वो हिले नहीं। तो हिलाना चाहा हमने बहुत, पर वो हिले नहीं। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव ठीक रखा, वेरी गुड। फिर लक्ष्मिता ने जैसे कहा, अरे यार यूपीएससी है, जैसे आपके अगर यूपीएससी यूट्यूब से क्लियर हो रहा है तो आप डॉक्टरी भी एमबीबीएस का डिग्री क्यों करने जा रहे हो? आप यूट्यूब से देख के मेडिकल पढ़ लो, उसके बाद बैठ जाओ चैम्बर लेके, आपके पास लोग आएंगे, आपने मेडिकल पढ़ा हुआ। तो अगर डिग्री आदमी जो पागल जैसे मैं 5 साल 10 साल लगा के डॉक्टर बन रहे, एक्सपर्ट बन रहे उस टॉपिक में, तो वो एक्सपर्ट है, उन्हें प्रॉपर पता है किसको कितना प्रेस्क्राइब करना है। यूट्यूब से मैं देख लूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मुझे कितना अमाउंट में लेना है। ये मैं भी आप ना आप बता पाओगे ना कोई, ये एक्सपर्ट ही बता पाएगा। तो इसलिए हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। नहीं तो यूट्यूब तो सबके पास है, सबके पास इतना दिमाग भी है कि यूट्यूब खोल लूँ और यूट्यूब में टाइप करके ढूंढ लूँ क्या मुझे चाहिए क्या नहीं। और फिर से एक ही बात, कोई बुक का डेफिनेशन ये बता ही नहीं सकता कि सबका एथिक्स सेम हो सकता है। सबका एथिक्स सेम हो ही नहीं सकता मेरे परसेप्शन से। आप लोग का शायद विवेक दा को ज्यादा लगता होगा कि एथिक्स सबका सेम हो सकता है, पर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक एक इंडिविजुअल का सिचुएशन ही डिसाइड करता है उसका एथिक्स। इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। Okay, so now last but not least, I'll ask the EC members to share their observations for today. I'll invite Bhargav. थैंक यू मॉडरेटर। तो आज का डिबेट बहुत ही अच्छा था और लास्ट में मैं अपना पॉइंट देना चाहता हूँ। कंज्यूमिंग मीट अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि अनहेल्दी होगा जब एक्सेस में होगा। एक्सेस में कोई भी चीज़ ऐसे भी अनहेल्दी होता है, वो मीट हो या कुछ अलग जूसी हो, सब कुछ ही अनहेल्दी होता है। और सेकेंडली अगर कोई-कोई एग्ज़ाम्पल्स होता है हम लोग का, जैसे कोई बिना मीट खा के बहुत एक अच्छा एथलीट बना है, वैसे मीट खा के भी बहुत अच्छा एथलीट बना ही है। और जो डाइट्स होता है उन लोग का बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट या फिर जो बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर हैं वो लोग ही सजेस्ट करते हैं। और थर्डली एथिक्स मेनली होता है हम लोग जो सोसाइटी से सीखते हैं या लोगों से सीखते हैं। तो एक सोसाइटी में अगर एक बच्चा देखेगा कि उसका पेरेंट्स या उसका फैमिली मीट खा रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसी को ही फॉलो करेगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगर कोई देखेगा कि उसका फैमिली वेज खा रहा है, तो उसको ही फॉलो करेगा। सो ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। और ये ये क्वेश्चन करके कुछ वो नहीं है हम लोग का कि किसी का हम लोग राइट छीन रहे हैं या फिर ऐसा टाइप का। सो एक अच्छा डिबेट था आज का। सो थैंक यू। Okay, so now I'll invite the observers, Spidey, to give his views. Moderator. Thank you, moderator. Rashi, now Yes. it's observers time, please. Okay. Thank you, moderator. First of all, I would like to clear one of the debater that I haven't said that meat is unhealthy. I have just, in fact, meat is very much healthy and it have various nutritional value. And moreover, the topic was related whether consuming meat is healthy, consuming meat is ethical or unethical. But the debate deviated from its path, and it was more like what is healthy or what is not. So it overall the points made were good, but it was good if it were related to the topic. That's all. Himashri, please share your views. थैंक यू मॉडरेटर। सो पहली बात,
मेरा जो क्वेश्चन था 4 टीम के लिए, उसका बहुत अलग मीनिंग, उसका आंसर ही दिया नहीं गया और उसका मीनिंग ही अलग निकाल दिया। आई डिडंट सपोर्ट कैनिबलिज्म, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, लेकिन ऑब्वियसली स्पीकर ने अलग मीनिंग निकाल दिया, तो वो हो गया। Otherwise, the debate was good. It was good to hear the point of views, but some people were just revolving around the surface and कोई डेप्थ में नहीं जा रहा था। कोई नहीं, कुछ लोग डेप्थ में नहीं जा रहे थे और कुछ लोग सिर्फ डिमीन कर रहे थे अदर लोगों को। सो उस वजह से थोड़ा डाउन हो गया। दैट्स इट, थैंक यू। Okay, now I invite Elver to express his views. Hello, Elver. Hello. I guess he's having network issues. I'll invite Defia to give her views. Thank you, moderator. It was actually a very nice debate, but I was expecting the four team to, at some point, which is currently going in the globe right now, like the environmental issue that is caused by the meat industries, and the resources allocation that is caused by the meat industries. Okay, so I was expecting them to add, but unfortunately it did not add it to the point. So overall, the debate was very nice, but in between it thoda it drifted apart, but overall the debate was nice. But I won't be giving my opinion because I'm very much, I don't know what to say, I'm very much satisfied with the debate. Okay. So anyone else wants to give their views? Please raise your hand. Okay. I'll invite Jyotirma. मैं बोलना चाहता हूँ कि दोनों साइड से ही करेक्ट है। और हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोचे तो इमोशनल्स आते हैं, इमोशंस के थ्रू हम सोचेंगे तो हाँ वो एक इशू है। तो मीट खाने के लिए नहीं खाना चाहिए, ऐसे थोड़ा इमोशंसली, ऐसे इमोशंस को हटाकर सोचे तो ये जस्ट ए फूड चेन, वही बोलना चाहता हूँ। Okay. So I guess no one else is there. If anyone wants to express your view, okay. Prasambhav, please. आज का डिबेट बहुत ही अच्छा था। मेरे हिसाब से दोनों जरूरी है। नॉन वेज मतलब चिकन या कोई मीट या नॉन वेज जो भी सोर्स हो, एग या फिश हो या फिर मीट हो, ये हमारे बॉडी के लिए चाहिए। और वेज भी बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। पर आजकल देखा जाए तो नॉन वेज में जैसे कि पहले जैसे प्योरिटी था वो अब नहीं मिलता है, चाहे वो चिकन हो या फिर अंडा हो या फिर मछली हो। तो ज़्यादातर हम लोग अगर वेज में फोकस करें तो बेहतर होगा। लेकिन ये अपना अपना सोच है कि अपना अपना खुद का है कि कौन क्या खाए, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से दोनों बैलेंस रहना चाहिए। इसलिए हम लोग डॉक्टर इसलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए अपने अच्छे हेल्थ के लिए। Okay, so now I'll invite Elver if he's there. ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों ही जरूरी है, वेज हो या नॉन वेज हो। हम अपना खुद का एथिकल डिलेमा किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लेने से भी प्रॉब्लम होगा बॉडी में, और सिर्फ नॉन वेज डाइट लेने से भी प्रॉब्लम होगा बॉडी में। तो दोनों का करेक्ट क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस। हाँ बैलेंस, सॉरी, हाँ बैलेंस वर्ड नहीं आ रहा था। हाँ करेक्ट बैलेंस होना चाहिए। तो वही इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। अच्छा, तो इसी के साथ आज का डिबेट सेशन खत्म होता है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा बीइंग द मॉडरेटर। मतलब जब क्वेश्चन आया था, मुझे आज मोशन आया था, मुझे लग रहा था एथिकल है कि एथिकल नहीं है। और जब अभी सेशन खत्म हो गया तब मुझे ये तो पता नहीं चला कि मीट खाना एथिकल है कि नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता लग गया कि क्या खाने में कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन्स है, एबीसी क्या है।
तो वन और द अदर वो अच्छा ही था आज का डिबेट. थैंक यू गाइस, हैव ए गुड नाइट. और कल जरूर आना, कल फ्री इसे जस्ट डिस्कशन सेशन है, तो होपिंग कि सब लोग आए और पार्टिसिपेट. लास्टली मॉडरेटर कहना है. या प्लीज. सो आज हम लोग का जैसे सेकेंड ईसी डिसॉल्व होने वाला है, सो मैं अभी एक डिबेट सेशन में सब लोग को एक मतलब एप्रिसिएशन मतलब पास करना चाहता हूँ. हम लोग का मेंबर्स थे इसी में विशेष पॉल, राजेश्री गोस्वामी, विवेक कलिता, कंचन गुप्ता और मैं. सो आप लोग प्लीज उन लोग के लिए एक हाथ ताली बजा दीजिए इमोजी वाला. सो थैंक यू गाइस. और कंटिन्यू होगा हम लोग का सेशन कल से, फिर से कल डिस्कशन सेशन है. और डिस्कशन होगा, सब लोग आएंगे. लेट्स सी मंडे में क्या होता है. मंडे जैसे होली है, सो वी विल मींस इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप. सो थैंक यू. और ऑब्जर्वर्स प्लीज भूलेगा मत कि आपको वोट करना है. एक लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप का, उधर में आके वोट करिए अपना. ओके, सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट. Good night. Good night.